दोस्तों नमस्कार। आज का ये इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हमारे साथ हैं माननीय श्री AK शर्मा जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एडिशनल PS टू द मिनिस्टर श्री दीक्षित जी, PS टू द मिनिस्टर श्री राजगोपाल जी। और दोस्तों बहुत जल्द हमारे साथ आदरणीय मंत्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जुड़ जाएंगे। और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं श्री तल्लीन कुमार जी भी। आप हैं CEO ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं समझता हूं कि एक बार हम जहां भी हैं वहीं से हम एक बार जोरदार तालियों से अपने घर पर, अपने ऑफिस में बैठकर जो हमारे गणमान्य अतिथि हैं उनका हम एक बार तालियां बजाकर स्वागत कर सकते हैं। प्लीज जहां भी जो भी है प्लीज एक जोरदार तालियों से, क्योंकि दोस्तों ये जो इंटरनेशनल MSME डे है इसके लिए हमने यूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इनवाइट किया था, पर किसी कारण से अपनी व्यस्तता के कारण वो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका मैसेज हमारे लिए आ चुका है। मैं वो मैसेज यहाँ पढ़कर आपको अभी सुना दूंगा। और दोस्तों हमारा जो ये आज का जो कार्यक्रम है उसमें लगभग 2000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। और मैं स्वागत करता हूं श्री AK शर्मा जी, सेक्रेटरी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, और CEO जैम श्री तल्लीन कुमार जी का। दोस्तों हम इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं कार्यक्रम, मैं चाहता हूं कि मैं जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो संदेश है वो मैं आपको एक बार पढ़कर यहाँ पर सुना दूं। ये संदेश है प्रधानमंत्री जी का। ये मैं एक बार चाहता हूं कि उनका एक संदेश में एक बार सुना दूं आपको, क्योंकि वो अपनी व्यस्तता के कारण खुद तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनका जो संदेश है वो हम एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का मैसेज कुछ इस तरह है। इट इज ए प्लेजर टू लर्न अबाउट द सेलिब्रेशंस टू commemorate International MSME Day and the webinar being organized by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, CIMSME, in association with Dainik Jagran. MSME sector plays a pivotal role in economic development. Lakhs of units of the sector are like economic engine for our country. We place unparalleled faith in our MSMEs and startups and are constantly emphasizing to make the sector more vibrant and attractive. Be it expanding the scope of definition of MSMEs or arranging special fund support, be it decision related to IBC or the decision to discriminalize minor mistakes, be it fast tracking of investment, easy credit access, mandatory procurement from MSMEs by CPSCs, provisions related to global tenders, or integrating enterprises to the formal economy. With simple competitive taxation system, we are marching ahead with comprehensive and holistic steps. Over the last 6 years, we have followed a system of governance that is professional and process-driven. We have adopted an approach that seeks to reform with intent, perform with integrity, and transform with intensity. During the 6 years, India's goal of self-reliance has been paramount in the policy and practice of the country. The corona crisis has taught us a lesson on how to speed it up. Now, a combined resolve of 130 crore citizens is to convert this disaster into an opportunity to make India self-reliant. With India's capabilities, talent, intellect, and entrepreneurial energy, we are ready today for a big push towards a new growth. The way ahead is self-sufficient India that will be fully integrated with the world economy. Self-reliant and self-sufficient India is about creating globally competitive enterprises in India, building a robust local supply chain, generating employment on a large scale, and helping our people become enabler to find solutions that can define the future of the country. In such a scenario, organizations like
CIM SME assume even more important a role to contribute towards realizing the collective resolve of the nation. May the occasion inspire micro, small and medium enterprises and startups to embrace new opportunities and renew and re-energize the resolve to further India's development story. I wish the International MSME Day celebrations all success. Signed by Honorable Shri Narendra Modi Ji, New Delhi, 27 June 2020. Address to Mukesh Mohan Gupta, President, Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises. सर, ये जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने हमें दी है, मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह से इसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने जितने भी यहाँ पर अतिथि हैं उन सबका, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ सुनने के लिए, जो गेस्ट हैं हमारे, उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके लिए तो मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन जयराम गडकरी जी को, ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री AK शर्मा जी को, श्री तल्लीन कुमार जी, CEO जैम, मिस्टर तेजस गोयनका, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड. My special thanks will be to दैनिक जागरण. My special thanks is to Shri Raj Gopal ji, Shri Dikshit ji, Mr. Sanjay Gupta of दैनिक जागरण, Shailen Jetli ji, Suneet Raghunath ji, Mr. Ashutosh Jha, who is the National Bureau Chief of दैनिक जागरण. I would also like to welcome here many more associations who are associated in this event: SME Connect, AIMO, BIEA, WASME, IIA, CMA and CWEIA. मैं जब सेक्रेटरी साहब को, जो आज हमारे MSME के सेक्रेटरी हैं, श्री AK शर्मा साहब, उनसे मैं पहली बार मिला था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चैम्बर को बुलाया था भारत की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करने के लिए. उनकी जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो उनका क्विक डिसीजन है लेने की जो क्षमता है, वो आज हमसे से किसी से छिपी नहीं है. मैं तो ये कहूँगा कि आज MSME डे जो है, हम ये MSME डे मना रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विद द लीडरशिप एट द टॉप फॉर द MSME मिनिस्ट्री, हमारे जो मंत्री जी हैं और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, वो जो हमारी पुरानी कहावत है कि 1 और 1 11 वाली बात जो है, वो मुझे लगती है कि ऐसा एक मुझे प्रतीत होता है कि ये जो MSME डे हम मना रहे हैं, इंटरनेशनल डे, ये तो मुझे लगता है कि जो हम एक पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिविटी लाने की बात है, वो है. लेकिन जब मैं देखता हूँ आज MSME मिनिस्ट्री की तरफ, जो MSME में काम हो रहे हैं उनकी तरफ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा साल ही शायद MSME का है. और दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि पूरा साल MSME के लिए है, क्योंकि जो हम रोज देखते हैं, जिस दिन भी हम देखते हैं, जब भी हम देखते हैं, सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई सपोर्ट MSME के लिए कर दी गई है. समय कठिन है, हम ये नहीं कह सकते कि जो समय है वो बहुत आसान है, समय कठिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो MSME मिनिस्ट्री है, जो मंत्री जी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनका हाथ हमेशा हमारे शायद साथ है. वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं शायद हमें साथ देने के लिए. कोई भी स्कीम हो, हमने कहा कि भाई हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा लीजिए 3 लाख करोड़ लीजिए, सरकार गारंटी देगी. हमने कहा कि साहब डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, CPSEs हैं, उनसे हम दिला देते हैं 45 डेज में आपको पेमेंट. हमने कहा कि साहब बहुत सारे अकाउंट जो है वो स्ट्रेस में है, NPA हो गए हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनको भी NPA से बाहर निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे, उनका रीस्ट्रक्चरिंग के लिए. और साथ में उनको, इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि किसी NPA अकाउंट को बैंकों से कहा है कि तुम इनको लोन ही नहीं बल्कि सबऑर्डिनेट डेट दो, ताकि इनकी जो डेट इक्विटी रेशियो है उसमें भी इंप्रूवमेंट हो सके. ऐसे न जाने कितनी स्कीम सर, जब से ये कोरोना आई है तब से आप हमें देते आ रहे हैं. हम बहुत बहुत धन्यवाद
मेरी तरफ से, हमारे जितने देश के एमएसएमईज हैं उनकी तरफ से, जो हमारे आज पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से मैं देना चाहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, आदरणीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को और सेक्रेटरी श्री ए के शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, चाहे वो सुबह के 8 हो या रात के 10 बजे हो, उन्होंने हमेशा फोन पर बात की है, बताया है। ये शायद लीडरशिप का कमाल भी है। वैसे तो जो आपकी टीम है वो हमेशा ही ये काम करती रहती थी, लेकिन अभी जो एक जज्बा है वो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा जज्बा आ गया है कि उसका जो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री तल्लीन कुमार जी का कि वो हमें जैम के बारे में दें कुछ ज्ञान, एक छोटी सी लाइन के साथ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री तल्लीन कुमार जी। सुनाई पड़ रहा है? जी जी, आपका आवाज, जी आपकी आवाज में आ रही है। धन्यवाद मुकेश मोहन गुप्ता जी। मंत्रालय के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री ए के शर्मा जी, चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट श्री मुकेश मोहन गुप्ता जी, इस वेबिनार में शामिल एमएसएमई सेक्टर से आए हुए अनेक पार्टिसिपेंट्स, मैं सर्वप्रथम दैनिक जागरण और टैली के सहयोग से इंटरनेशनल एमएसएमई डे के दिन आयोजित इस वेबिनार के लिए चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट श्री मुकेश मोहन गुप्ता जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार बनाने में एमएसएमई की भूमिका अहम रही है और भविष्य में भी रहेगी। अगर हम देखें कि कितना ग्रॉस वैल्यू एडेड एमएसएमई सेक्टर का रहा है कुल जीडीपी में, तो वो संख्या करीब 32% है और भारत से कुल निर्यात में एमएसएमई का शेयर 48% से भी ज़्यादा है। इन शब्दों के साथ में जेम के बारे में संक्षेप में कुछ बोलना चाहूँगा। जेम ऐसे देखा जाए तो लगता है कि सिर्फ एक नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जहाँ से स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खरीदारी करते हैं, लेकिन मैं सबों को बताना चाहूँगा कि इससे भी ज़्यादा है जेम। और क्यों ज़्यादा है, ये 4 बिंदु की तरफ आपके ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पहला, ये जेम के चलते सबसे ज़्यादा जो चेंज लेगेसी प्रोक्योरमेंट दशकों से चली आ रही प्रोक्योरमेंट के प्रोसेसेस में जो बदलाव आया है, एक बहुत मूलभूत बदलाव आया है। ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं वो विशेष करके समझ पाएंगे कि कितना मुश्किल होता है प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करना ट्रांसपेरेंटली और उसमें विजिबिलिटी लाना। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस कंट्री में जेम ने ट्रिगर किया, पहला। दूसरा, मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें जेम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस प्रकार हम लोग एनालिटिक्स ला रहे हैं, डिजिटाइजेशन ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इसके वजह से प्रोक्योरमेंट में पहले विजिबिलिटी नहीं रहती थी, अब उसमें विजिबिलिटी आ गई है, एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा, मैं बोलना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में जेम के लिए 3 मुख्य स्तंभ स्थापित किए गए हैं। ये है, पहला, इंक्लूसिविटी, छोटा से छोटा सेलर बिना टेंडर के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बिक्री कर सकता है, इंक्लूसिविटी। दूसरा है यूजेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर इसको इस्तेमाल करें और टेक्नोलॉजी की मदद से हम आगे बढ़ें और ट्रांसपेरेंट बनाएं। तीसरा है एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग, इसमें खरीदने से बचत होती है, बायर के लिए बचत होती है और अल्टीमेटली देश का इसमें लाभ होता है। ये मैं तीसरा बिंदु बोलना चाहूँगा और ये 3 स्तंभ के बारे में जो जेम प्रोक्योरमेंट से भी ज़्यादा है इस विषय में। और चौथा, मैं बोलना चाहूँगा कि जेम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें रूल बेस्ड प्रोसेसेस है। इसके चलते क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी इंटेंट हम जल्दी से ट्रांसमिट कर पाते हैं। अगर आप सोचिए कि PPP मेक इन इंडिया को ट्रांसमिट करना है या PPP पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ट्रांसमिट करना है, वाकई इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑफलाइन भी तो हो ही रहा है।
लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत का फर्क है। मार्केट प्लेस में इम्प्लीमेंट करना और ऑफलाइन इम्प्लीमेंट करने में बहुत का अंतर है। वो अंतर इसलिए है कि हम रूल बेस्ड प्लेटफॉर्म में रियल टाइम में फिल्टर्स कर सकते हैं, एनफोर्समेंट को देख सकते हैं, कंप्लायंस को देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इन चारों बिंदुओं के चलते मैं समझता हूँ कि एक नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल केवल प्रोक्योरमेंट नहीं है, उससे भी बड़ा है। अब मैं खूब संक्षिप्त में आपको तीनों बिंदुओं के बारे में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हम लोग आगे बढ़े हैं। सबसे पहला अगर आप देखें तो हम लोग आगे बढ़े हैं एमएसएमईज, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आर्टिजन, क्राफ्ट्समैन और वीवर को जेम पर लाने के लिए जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उसमें काफ़ी सफलता मिली है। एमएसएमई सेलर्स की संख्या करीब करीब 26% है, लेकिन वो कुल ऑर्डर वैल्यू का 56% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। इससे पता चलता है कि जो एमएसएमई इस पर है, जेम पोर्टल पर है, वो बेनिफिटेड हो रहा है। वैसे ही अगर आप स्टार्टअप्स को देखें तो स्टार्टअप्स की संख्या पहले से बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब इनकी संख्या 5,805 हो गई है और 1920 में उनका कुल ऑर्डर वैल्यू 627 करोड़ हो गया। अगर लास्ट ईयर से देखा जाए तो 1920 में जो बढ़ोतरी हुई है वो 100% की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार विमेन सेलर्स 13,000 से ज़्यादा है, SC/ST सेलर्स 4,830 से भी ज़्यादा हैं। और जितनी खरीदारी 19-20 साल में हुई है जेम पर, उसमें मैं बताना चाहूँगा सबों को कि एमएसएमई, विमेन एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप से 69% की खरीदारी हुई है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और इंक्लूसिविटी में जो जेम की प्रगति हुई है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ एमएसएमई, विमेन एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स का रहा है। और इसके अलावा हम लोग बोलना चाहेंगे आप सबों के लिए कि पेमेंट से एक बहुत बड़ी समस्या रही है एमएसएमई के लिए जेम पर, और वो कई कंप्लेंट्स हमको मिले थे कि टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात करके एक जनवरी में ओएम निकाला था, एक डायरेक्शन निकाला था टाइमली पेमेंट के लिए। और वो डायरेक्शन में मुझे खुशी हो रही है बताने में कि फर्स्ट जुलाई को मैं लाइव जा रहा हूँ इस फंक्शनैलिटी से, जिसमें अगर बायर प्रोविजनल रिसीट सर्टिफिकेट जनरेट नहीं करता है तो जेम कर देगा। अगर क्रेडिट रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट बायर नहीं करता है निर्दिष्ट समय में तो जेम कर देगा। सप्लीमेंट्री इनवॉइस जेम बनाएगा और स्टैगर्ड डिलीवरी, इस तरह की कई फंक्शनैलिटी के साथ हम जुलाई 1 पर लाइव जाएंगे। कुछ फंक्शनैलिटीज जैसे माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट, ऑनलाइन साइक्लिक पेमेंट सर्विसेज में जो होता है, इसका मैं जुलाई के एंड के पहले लाइव चले जाएंगे हम लोग। तो मैं ये बताना चाहता था इंक्लूसिविटी के बारे में। दूसरा मैं बताना चाहता था कि यूजेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसमें जैसे आप सर्च इंजन आप देखें, सर्च इंजन को और शक्तिशाली बनाने के लिए हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एनालिटिक्स के जरिए बायर और सेलर का एक्सपीरियंस अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। बायर को सेलर इनवाइट भेज सके, इसके लिए हम लोग सेलर इनविटेशन मॉड्यूल बनाए। सेलर्स अगर कई बार ऐसा होता है कि वो कैटेगरी के बारे में बताना चाहते हैं कि मैं ये कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, इसके लिए हम लोग क्राउड सोर्सिंग ऑफ कैटेगरीज एक नया मॉड्यूल हमने बनाया है, जहाँ कोई भी बायर या सेलर आके कैटेगरी के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा हम लोग यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत अहम बात है। इसके बारे में थोड़ी विशेष जानकारी मैं देना चाहूँगा। ये है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पोर्टल हो या सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल हो या इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम हो, ये कई पोर्टल्स जो हैं वो पब्लिशिंग पोर्टल्स हैं और हमारा जेम मार्केट प्लेस है। और मार्केट प्लेस में कई सारी ऐसी बातें हैं जो पब्लिशिंग पोर्टल्स से अच्छा और बना देती है हम लोग के पोर्टल को। उन बेनिफिट्स में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेवरल नॉचेस बढ़िया है जेम कंपेयर टू पब्लिशिंग पोर्टल। और हम लोग की ये सरकार ने एक इसमें डिसीजन लिया है उन्होंने, यूनिफाइड पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम देश में लागू किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी
जेम पर लाई जाएगी, और जब बायर जेम पर आएगा तो उसको एक जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट और पास्ट ट्रांजैक्शन समरी लेना पड़ेगा। लेने के बाद ही वो ये तय कर सकते हैं कि जेम से लेंगे या जेम से बाहर जाएंगे। अगर बाहर जाएंगे तो उनको अवेलेबिलिटी रिपोर्ट की आईडी देनी पड़ेगी, और वो ऑनलाइन हम लोग वेरीफाई करेंगे थ्रू इंटीग्रेशन विद जेम, तभी वो बाहर में टेंडर पब्लिश कर पाएंगे। इसके वजह से क्या होगा कि हर बायर को एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस जेम पर उपलब्ध हो सकेगा। और अगर उनको लगता है कि कोई कैटेगरी जेम पर नहीं है, तो वहीं पर मैं बिड करने का भी, पब्लिश करने का भी प्रावधान जेम पर ही उनको उपलब्ध कराऊंगा। ये फीचर करीब करीब 15 जुलाई के आसपास लाइव हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है ट्रेड्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर दिया है, और ट्रेड्स में 3 ऑपरेटर हैं। हम लोगों ने इस प्रकार किया है कि कोई भी सेलर बिल डिस्काउंटिंग के लिए जब जाएगा तो तीनों में जो सबसे अच्छा रेट है उस सेलर को मिलेगा ट्रेड्स को। इस प्रकार का हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया है। इसके अलावा कंट्री ऑफ ओरिजिन और लोकल फिल्टर जो मेक इन इंडिया के लिए है वो 20 मई को लाइव हो चुका है। इसके अलावा एमएससी के लिए हमारे पास एमएससी का फिल्टर है, जिस फिल्टर को प्रयोग करके केवल एमएसएमई के आइटम्स खरीदे जा सकते हैं बाय बायर्स। हम लोगों ने एक और वर्चुअल असिस्टेंट जानबूझकर बनाया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल हेल्प डेस्क पर न जाके वर्चुअल असिस्टेंट यानी चैटबॉट के माध्यम से सॉल्व हो जाए। ये बन रहा है। 3000 इस पर हिट्स होते थे पहले, अब ये 10,000, 14,000, 15,000 की तरफ जा रहा है तेजी से, और इसके और भी आगे बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि उद्योग आधार मेमोरेंडम जो डेटाबेस है एमएसएमई का, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटाबेस है। हमारी लगातार AK शर्मा जी से बातचीत हो रही है कि किस प्रकार नया सेलर अगर उद्योग आधार मेमोरेंडम डेटाबेस पर आता है और रजिस्टर करता है तो कैसे मैं उसको एक लिंक दे दूं ताकि वो सीधा रजिस्ट्रेशन पेज जेम पर आ जाए और अपने आप को रजिस्टर कर ले। ये खूब शीघ्र ही ये देखेंगे आप लोग कि इसका क्रियान्वयन हो जाएगा और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा कई सेलर्स ने जिक्र की है, जो हमको फीडबैक मिला है कि कई कैटेगरीज के में प्रोडक्ट अपलोड करने में उनको मुश्किलाहट होती है, कठिनाइयाँ आती हैं। तो हमने उसमें पाया कि जो कैटेगरीज हैं वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज नहीं है और सिंप्लीफिकेशन की भी कहीं कहीं ज़रूरत है। वैसा हम लोगों ने 900 कैटेगरी आइडेंटिफाई किया है, और 900 कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, हज़ारों होंगे, लाखों प्रोडक्ट्स होंगे जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं कि ये कैटेगरी में स्पेसिफिकेशन बायर कर सके, अपना ड्राइंग भी अपलोड कर सके, कई कैटेगरी के लिए एक साथ ड्राइंग अपलोड कर सके। इस तरह की जितनी सुविधाएं हैं कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग दे रहे हैं, ताकि बड़े बायर डिफेंस के हों, रेलवेज के हों, CPSE के हों, वो जेम से प्रोक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग 184 प्रोसेसेस जो सॉफ्टवेयर में है वो बना चुके हैं ताकि जेम 4.0 की तरफ जा सके। और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूँ कि जेम 4.0 सितंबर 2020 तक हमारा काम समाप्त हो जाएगा, और हम लोग नया और पावरफुल जेम दे पाएंगे सब लोगों को। इसके चलते हम लोगों ने 200 प्रोसेसेस अभी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में हम लोग लाइव करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली जेम को असेस किया है ऑन कॉस्ट सेविंग और ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने 1,63,000 टेंडर एनालाइज करके ये पाया कि 9.75% सेविंग हो रहा है ऑन मीडियन प्राइस। मीडियन प्राइस मैंने सबसे नीचे और सबसे ऊपर को अगर निकाल दिया जाए तो बीच वाले प्राइस पर 9.75% का सेविंग हो रहा है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और ये 1 साल का डेटा पर उन्होंने निकाला है। सर, सर्वाधिक सेविंग का रेंज 23-24% से लेकर 60.52% है, 60-61% तक है, और ये है 24% है एम्बुलेंस में और 61% है लाइट ट्रक्स में, ये देखा गया है। इसके अलावा 238 सेलर को क्वेश्चनर दिए गए थे, उसमें वर्ल्ड बैंक ने पाया कि परसेप्शन ये पाया कि ट्रांसपेरेंट है जेम, ये लोगों ने कहा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जेम एक ऐसा चीज़ है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ
टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने में सक्षम हुए हैं। और ये एक उदाहरण ऐसा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अगर एक स्ट्रेटेजिक और क्लियर माइंडेड इंटेंट से बनाया जाए तो देश में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है, न केवल देश के लिए बल्कि उसमें जितने एमएसएमईज हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मार्जिनलाइज्ड सेलर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं, सबों के लिए लाया जा सकता है। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि ये जो आपने बताया कि पेमेंट के लिए जो भी ऑर्डर आएंगे जैम के थ्रू, उनका जो पेमेंट होगा उसके लिए आप कुछ हमारी मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मदद होगी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। और दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको इंतजार है सुनने के लिए। श्री A.K. शर्मा जी, ऑनरेबल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सर मैं स्वागत करता हूं आपका केवल इन शब्दों के साथ कि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। उम्मीद की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि माना हालात प्रतिकूल है, रास्तों पर बिछे फूल हैं, पर तू खुद अपना अवरोध न बन, तू उठ खुद अपनी राह बना। माना सूरज अंधेरे में है खो गया, पर रात अभी हुई नहीं, यह तो प्रभात की बेला है। और खास बात सर ये कि तेरे संग हैं उम्मीदें, जो हम शर्मा साहब आपके रूप में देख रहे हैं और मंत्री जी के रूप में देख रहे हैं कि तेरे संग हैं उम्मीदें, किसने कहा तू अकेला है। ये पूरा भरोसा है हमें सर आपकी तरफ से। मैं स्वागत करता हूं श्री A.K. शर्मा जी का और निवेदन करता हूं कि सर हमें आप थोड़ा एनलाइटन करें, आपकी क्या स्कीम है और क्या आगे आपके प्लान्स हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्री A.K. शर्मा जी। बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपके इन अच्छे शब्दों के लिए। अभी हम इतनी कमाई नहीं कर पाए हैं कि ये शब्द मेरे लिए उपयोग किए जाए। मेरे बात महीना ही हुआ है, लेकिन मैं इस अवसर पर ये बात अवश्य कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसे एक मंत्री जी के नीचे काम करने का मौका मिला है जिन्होंने हम लोगों पे पूरा विश्वास रखा हुआ है, पूरी स्वतंत्रता दी हुई है कि जो भी नया, जो भी अच्छा हमसे हो सके वो करने में हमें उनका पूरा वरद हस्त है। तो मैं आज के इस अवसर पर आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे एमएसएमई वर्ल्ड को, पूरे एमएसएमई के अपने भाइयों बहनों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें माननीय मंत्री जी का इस अच्छे काम करने के लिए पूरा सहयोग और समर्थन है। इसलिए हम जो भी थोड़ा बहुत हम कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर, सलीम कुमार साहब, गुप्ता जी और ऑल द कलीग, मैं माननीय सलीम कुमार साहब ने जो बात कही वहां से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा, जिससे कि मैं बाद में इस बात को भूल न जाऊँ, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमने अभी अपनी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग किया था, उसमें भी ये विषय हमने ऑफिशियली रखा था कि भाई हम एक नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं, हम क्लासिफिकेशन लेके आ रहे हैं। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दरमियान ही हम आपसे ये परमिशन मांगेंगे कि क्या आपका डेटा हम जेम को लिंक करते हैं। जैसे आप मोबाइल पे बहुत से चीज़ें, बहुत सी ऐसी सर्विसेज आती हैं जिसमें आपकी परमिशन मांगी जाती है कि क्या आप अपनी लोकेशन शेयर करने को तैयार हो या XYZ शेयर करने को तैयार हो। वैसे ही हम इसमें एक ऑप्शन सभी रजिस्टर करने वाली इंटरप्राइजेज से पूछने वाले हैं, ये विकल्प पूछने वाले हैं कि आप क्या जेम में रजिस्टर करना चाहेंगे। तो हमारी एडवाइजरी कमेटी ने हमें एडवाइस किया कि हाँ बिल्कुल आप पूछिए और ये ऑप्शन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बाद में हम भी भूल जाएंगे, रजिस्टर करने वाला भी भूल जाएगा और फिर एक नई प्रक्रिया लंबी सी शुरू होगी। तो इसे सलीम कुमार साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस काम के लिए हमें प्रेरणा दी। और मैं चाहूँगा कि 1 तारीख से हम जो नया रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं उसके पहले ही हम बाकी इनकम टैक्स और जीएसटी के साथ हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी के साथ ये भी इंटीग्रेशन हमारा हो जाए तो मुझे बड़ी व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी। मैं अपने अधिकारियों को भी ये बात बोला हुआ है कि इंटीग्रेशन भी करना है। मित्रों, आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे समय में हम इस समय गुजर रहे हैं उससे निपटने के लिए ये एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एक सेक्टर है जिसपे करोड़ों लोग, लाखों परिवार इस पे निर्भर करते हैं, करोड़ों परिवार निर्भर करते हैं।
इसलिए मैंने 2 महीने लगभग, अभी 2 महीना पूरा नहीं हुआ है, होने वाला है। 2 महीना पहले जब मैंने कार्यभार संभाला था इस पोस्ट का, उसी समय उसी दिन मैंने अपने मित्रों से कहा था कि देखिए, इस समय हम न बैठ सकते हैं न सो सकते हैं। एटलीस्ट मुझे तो नींद नहीं आएगी, जहाँ उस समय के हालात और भी भयावह थे, क्योंकि रोड पर कामदार दिख रहे थे, बिजनेस दिख रहे थे, चारों तरफ बड़ी अनिश्चितता का वातावरण था। तो मैंने कहा अपने मित्रों से कि ये एक युद्ध स्तरीय काम करने का एक मौका है, और शायद ईश्वर ने हमें इस काम के लिए चुना है, हमें इसमें कहीं भी निष्फल नहीं होना है। और उस स्पिरिट से हमने काम किया। आपको आश्चर्य होगा कि मात्र 9 दिन के अंदर हमने चैंपियंस जैसे एक देशव्यापी पोर्टल और एक देशव्यापी ग्रीवांस फेडरेशन व्यवस्था खड़ी कर दी अपने साथियों की मदद से। तो मैं अपने पूरे एमएसएमई मंत्रालय के अपने सभी साथियों का भी इस मौके पे आभार करना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी के स्टाफ का भी आभार करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें संपूर्ण समर्थन दिया। आपको जानकारी होगी कि सरकार ने एमएसएमईज को इस संकट की घड़ी से निकालने के लिए, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि इक्विटी चाहिए या डेट चाहिए या एनपीए ग्रस्त एमएसएमईज को सहायता चाहिए, सारे दृष्टिकोण से, सारे बिंदुओं पर सरकार ने सोचा। 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर को ये कहा गया कि अब ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इन सारी बातों को हमने बहुत ही, जितना कम समय हो सके उतने कम समय में हमने इन सारी बातों को अमल करने का प्रयास किया। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि 13 मई को ये पैकेज डिक्लेयर हुआ था। लगभग 1 महीने के अंतराल में सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारे के सारे जो काम है वो चल पड़े हैं, सारे लाइन पे आ चुके हैं। एक आध काम अभी बाकी है और जो हम लोग काफी उसको एक्टिवली हम कर रहे हैं। अंतिम बात मैं, क्योंकि मंत्री जी बोलने वाले हैं इसलिए मैं बहुत लंबी बात अपनी नहीं करूंगा, लेकिन अंतिम बात मैं कह करके ये समाप्त जरूर करूंगा कि जो हमने अभी कल पूरा जो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन, पूरी डिफिनीशन की जो क्राइटेरिया और इन सारे बातों में जो बदलाव किया है, वो मित्रों वो बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव है। आपने शायद अभी तक पढ़ भी लिया होगा, मैंने इसीलिए कल थोड़ा वो करके मैंने कल डिक्लेयर उसको करने का प्रयास कर दिया था। आपने देखा होगा कि दूसरे ही पैरा में हमने ये लिखा है कि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। इतना ही नहीं, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने स्टाफ के, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रूफ आपको एमएसएमई रजिस्टर करते समय हमें देना नहीं होगा। ये हमारी बहुत ही, और माननीय मंत्री जी का भी यही दृष्टिकोण था कि भाई हम क्यों नागरिक से या इंटरप्राइज से हम इतने कागज क्यों मांगे, या फिर 1 साल के बाद उसको रिन्यूअल करने के लिए क्यों करें। तो इन सारी बातों को हमने ध्यान में रखते हुए हमने कहा है कि न तो कोई कागज की आवश्यकता होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, न ही किसी रिन्यूअल की आवश्यकता होगी। एक परमानेंट नंबर होगा। आप जब तक आपकी इंटरप्राइज जीवित है तब तक ये नंबर चलता रहेगा। उसके क्लासिफिकेशन में ऊपर नीचे जैसा आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, तो उसमें स्वाभाविक रूप से उसको ऊपर करने की व्यवस्था की गई है। तो इसे हमने बहुत सरल रखा है, बहुत ही सिंपल रखा है। और उसके बावजूद भी, इतना सिंपल रखने के बावजूद भी, हमने जिला स्तर पर, जिला उद्योग केंद्रों में और अपने जो चैंपियंस में हमने कंट्रोल रूम खोले हैं, उनमें हमने एक पूरी फैसिलिटेशन मैकेनिज्म को, ग्रीवांस फेडरेशन मैकेनिज्म को हमने एक वैधानिक आधार इस नई व्यवस्था के तहत दे दिया है। ये हमारे किसी AK शर्मा सेक्रेटरी हैं, इसलिए उनके मन में आया कि हम चैंपियन व्यवस्था करें, तो इसलिए व्यवस्था खड़ी हुई, ऐसा नहीं। अब जो भी सेक्रेटरी आएगा या जो भी लोग काम पे रहेंगे, उसको इस वैधानिक व्यवस्था को चालू रखना पड़ेगा। उसमें जो भी आनुषंगिक फेरफार होंगे उनको उसके साथ, लेकिन यह एक रजिस्ट्रेशन और हैंड होल्डिंग को हमने मर्ज कर दिया है। ये हैंड होल्डिंग इतनी आवश्यक है क्योंकि मैं तो गांव से आता हूँ, छोटे कस्बे से आता हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहाँ
युवा युवा वर्ग को या छोटे उद्योगकार को या छोटे उद्यमकार को कितनी दिक्कतें, कितनी उलझने और कितनी असमंजस की स्थिति फेस करनी होती है। तो इन सब बातों के मद्देनजर हमने एक पूरी पुख्त व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की है। अंत में मैं ये बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जैसा कि सलीम कुमार साहब ने बताया कि जेम के साथ उसी तरह से एमएसएमई का जो बाकी बकाया था सरकारी विभागों के साथ या पीएसयूज के साथ या इवन प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भी हम लोग लेने जा रहे हैं विषय को, उस पर भी हम लोग काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में हमें काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला है। उस पूरी व्यवस्था को भी हमने पूरा ऑनलाइन कर दिया है। अब सारे पीएसयूज और सरकार के जो विभाग हैं उसमें ऑनलाइन हमें वो अपना रिपोर्ट मई के महीने में कितना बाकी था, कितना नया बिल आया और अंत में कितना उन्होंने भुगतान किया, कितना पेमेंट किया, ये सारी बातें हमें अब सीमलेस ढंग से ऑनलाइन ढंग से मिलने लगी है। मित्रों, आने वाले दिनों में हम हमारा कमिटमेंट है, ये मेरा व्यक्तिगत भी कमिटमेंट है और मंत्रालय के सचिव होने के नाते भी कमिटमेंट है कि मैं इस सेक्टर के साथ बहुत दिल से जुड़ा हूँ और दिल से इस सेक्टर की बेहतरी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि गांव-गांव में, छोटे कस्बों में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, लोगों को रोजगारी देने के लिए और वहाँ के लोगों की जीवन को के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह सेक्टर, ये एमएसएमई क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उस दिशा में, उस विचार से, उस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। आप लोगों का सुझाव और मार्गदर्शन और माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। आप सबको इस इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर मुझे याद करने के लिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद। खास करके मिस्टर गुप्ता का खूब खूब धन्यवाद, उन्होंने हमें आग्रह करके हमें इस मौके पर यहाँ बुलाया, इसके लिए उनको खूब खूब धन्यवाद। आप सबको अपना समय निकालकर सुनने के लिए खूब खूब धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका बड़प्पन है सर। मैं समझता हूँ कि आपका जो शेड्यूल है आजकल कितना बिजी चल रहा है, उस बिजी शेड्यूल में से हमारी एक रिक्वेस्ट पर आपने तुरंत ये हमारा जो इनविटेशन था, जो रिक्वेस्ट थी, वो एक्सेप्ट कर ली। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सर आपको धन्यवाद देता हूँ सर। ये आपका लगन है सर, ये पैशन है आपका शायद एमएसएमई सेक्टर के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके लिए मैं समझता हूँ आपने जो ये कल रात को जो पूरी गाइडलाइंस इशू की हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए, उद्यमी रजिस्ट्रेशन के लिए, और जिसमें आपने कहा है कि भाई कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, कोई आपको रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपका ये कदम सर, जो प्रधानमंत्री जी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या जो हमारा जो वर्ल्ड रैंकिंग में जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार हमारा जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, शायद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उस ओर भी। दूसरी ओर जो आपने कहा सर कि आप गांव से आए हैं, कस्बे से आए हैं और आप समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो मैं देख रहा हूं सर, इस समय हमारा जो देश है उसमें जो टॉप लीडरशिप में है, वो शायद सभी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एकदम बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने देखा है अपने जीवन में कि क्या परेशानी है छोटे उद्योगों को, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या वो फिर हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी हों या अब हमारे सेक्रेटरी एमएसएमई श्री शर्मा साहब हो। वो सब कह रहे हैं कि भाई हम गांव से आए हैं, कस्बों से आए हैं, हमने देखा है, हम ऐसे शहरों में बहुत बड़े बड़े भवनों में या किसी बहुत बड़ी ऐसी उससे बिलोंग नहीं करते हैं कि हमें पता नहीं है कि ये जो छोटे लोग, जो छोटे व्यापारी हैं हम जैसे, उन लोगों की क्या समस्या है। आपको सब पता है। और इसीलिए शायद जो आपने जो सर जो नारा दिया है एक एग्री बिजनेस का, वो भी एग्री एमएसएमई का, वो भी एक शायद एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं और जो खास तौर से अभी जो हमारे कुछ जो मजदूर भाई हैं वो कुछ गांव में चले गए हैं। अब मैं समझता हूं कि वो वहां पर भी अपना कोई फूड प्रोसेसिंग का, कोई हैंडलूम का, कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी मंत्री जी की लीडरशिप में ये तो हमें पूरी अब उम्मीद है कि अब उनको किसी भी परेशानी की शायद उन सामने नहीं आएगी। परेशानी आएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो परेशानी है उनका हल, मैं ये नहीं कहता कि कोई ऐसा, आपने कहा कि आपको अभी बहुत कम समय हुआ है, हम समझते हैं कि सर आपके पास ऐसा कोई जादू का डंडा नहीं है,
लेकिन जिस तरह से आप प्रयत्न कर रहे हैं सर दिन रात, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हुई हैं जो हमने इतिहास में अभी तक कम से कम सर मैंने तो अपनी लाइफ में ना देखी है, और गूगल भाई से भी पूछा है तो वहां पर भी पता चला है कि वो ऐसी स्कीम्स तो अभी कभी आई नहीं है। हमने जो भी आपसे रिक्वेस्ट की, मैं समझता हूँ अधिकतर चीजें आपने मान ली हैं। एक दो चीजों की तरफ सर अगर आप परमिशन दें तो मैं, क्योंकि मंत्री जी का अभी मंत्री जी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, तो हम मंत्री जी का स्वागत करेंगे पहले। तो दोस्तों मंत्री जी ज्वाइन कर रहे हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम में से। सर स्वागत है आपका, माननीय मंत्री जी स्वागत है आपका बहुत बहुत इस एमएसएमई इंटरनेशनल डे पर सर। और सर मैं आभारी हूं आपका कि आपने समय निकाला एमएसएमई इंटरनेशनल डे पर हमें कुछ अपने जो व्यूज हैं वो शेयर करने के लिए। और मैं सर अभी यही कह रहा था कि वैसे तो आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे है, लेकिन मैं समझता हूं कि सर जब से आपने एमएसएमई का भार संभाला है तब से ऐसा लगने लगा है कि भाई एमएसएमई डे तो रोज एमएसएमई, मतलब कभी लगता है कि ये एमएसएमई साल चल रहा है, ये एमएसएमई सदी चल रही है, क्योंकि लगभग हर दिन एमएसएमई के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट, मतलब हम जो मांगते हैं सर आपसे वो आप देने के लिए, हम समझते हैं कि सरकार की भी लिमिटेशंस है, लेकिन उन लिमिटेशन के साथ साथ मैं समझता हूं कि जितना भी आप कर सकते हैं सर उससे ज्यादा आप हमारे लिए कर रहे हैं। और ये जो जोड़ी है सर आपकी और हमारे जो माननीय सेक्रेटरी साहब की, मैं समझता हूं कि ये इतनी एक गजब टीम है कि एमएसएमई को इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। सर हमने आपको हमेशा देखा है कि आप एक बोल्ड और क्विक डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं सरकार में, और वो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में वो भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सर मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि 12 मई 2020 को भी आपने हमें संबोधित किया था, हमने कुछ डिमांड की थी आपसे, और 13 मई को वो जो हमने डिमांड की थी उसमें अधिकतर चीजें आपने हमारी मान ली। 13 मई तक एक दिन में आपने वो उनमें से अधिकतर चीजें हमारी मान ली है। जिससे हमने कहा कि साहब हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, आपने कहा लो भाई 3 लाख करोड़ ले लो। हमने कहा सर डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम है, आपने कहा 45 दिन के अंदर सब पेमेंट करा देते हैं। हमने कहा कि सर बैंक की जो स्कीम्स हैं वो थोड़ी अलग अलग हैं, आपने कहा चलिए सबकी एक स्कीम कर देते हैं। हमने कहा कि साहब मॉरेटोरियम पीरियड बढ़वा दीजिए, आपने कहा ठीक है कर देते हैं। हमने कहा कि सर आप ये रीस्ट्रक्चरिंग जो है एनपीए का इनको अलाउ कर दीजिए, आपने कहा कि हम रीस्ट्रक्चरिंग क्यों, हम तो साथ में इनको और सबॉर्डिनेट डेट भी दे देते हैं। हमने कहा सर आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल, आपने कहा लीजिए 20% एडिशन। हमने कहा कि सर इन एमएसएमई को इक्विटी की प्रॉब्लम है, आपने कहा लीजिए फंड्स ऑफ फंड्स लीजिए। हमने कहा कि सर डेफिनेशन की समस्या और जरूर है, आपने कहा कि डेफिनेशन में मैं ऐसे कर देता हूं कि अधिकतर लोगों को इस फायदा देने के लिए इस डेफिनेशन को बहुत वृहद कर देते हैं और साथ में एक्सपोर्ट की टर्नओवर हटा देते हैं, जिससे जो एक्सपोर्ट है वो हमारा और बढ़ सके। सर बस 2-3 पॉइंट्स और हैं जिनके ऊपर हम आपका और ध्यान चाहेंगे। मैं समझता हूं कि आज हम आपसे बात करेंगे और बहुत जल्द शायद उनमें से भी जो भी संभव हो सकेगा वो आप हमें जरूर देंगे। एक तो सर मेरा ये है कि जो लिटिगेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए। अगर कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल जैसे सर एनसीएलटी वगैरह थी वो अगर कुछ बना दिया जाए तो बहुत अच्छा है। एक सर हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में सर 1 लाख रुपए की जो लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है, उससे सर एमएसएमई थोड़े परेशान है। उनको लगता है कि जो पहले जो पेमेंट की समस्या थी, गवर्नमेंट पेमेंट तो आपने सर समस्या हल कर दी, लेकिन जो लार्ज कॉर्पोरेट में या किसी और जो उनको पेमेंट अटका हुआ था, अगर वो लिमिट सर खास तौर से एमएसएमई के लिए 1 करोड़ ही रख दी जाए तो मैं समझता हूँ ये एक सर बड़ा एक इन एमएसएमईज के लिए, हम एमएसएमईज के लिए बड़ी सहायता होगी। और सर एक सरफासी एक्ट है, उसको अगर कुछ दिन के लिए जैसे आईबीसी होल्ड किया है उसको थोड़ा होल्ड कर दिया जाए। और साथ में सर एक रिक्वेस्ट ये है कि ये जो 3 लाख करोड़ का आपने लोन दिया ये बहुत बड़ी सहायता है सर, लेकिन जो इसका रीपेमेंट पीरियड है सर वो 3 साल का है, मतलब 4 साल में 1 साल मॉरेटोरियम पीरियड है और 3 साल का रीपेमेंट। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब इस लोन से ना तो कोई कैपेसिटी बढ़ेगी, ना कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा, क्योंकि ये लोन तो बहुत सारा वर्किंग कैपिटल में यूज़ होगा, तो इसको जो रीपेमेंट पीरियड है सर उसको अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो सर काफ़ी बड़ी एक मदद मिल सकती है हम एमएसएमईज को। और सर जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो अगर जो मैं समझता हूँ कि एमएसएमई के अलावा अगर और अकाउंट्स में भी अगर ये रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी कर दी जाए तो और भी अच्छा रहेगा। और सर
सर एक चीज और सर, ये एनबीएफसी के लिए जरा अगर एक इन पे क्लोज फॉलोअप रखा जाए कि वो भी इन लोन को दें तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे आप हमेशा कहते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ क्योंकि चीप लेबर है, यंग जनरेशन है, हमारे यहाँ लोएस्ट टैक्स रेट है, हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हमेशा बढ़ती जा रही है। और जैसे अभी माननीय सेक्रेटरी साहब ने बताया भी है कि जो अभी जो नई गाइडलाइंस आपके लीडरशिप में और सेक्रेटरी साहब की लीडरशिप में जो इशू हो रही हैं, वो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सर, ये वोकल फॉर ग्लोबल के लिए और एग्री एमएसएमई, मैं समझता हूँ ये आत्मनिर्भर भारत में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर कुछ शब्दों के साथ कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, आप जैसे सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मैं स्वागत करता हूं माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत इस इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर। सर हमारा रिक्वेस्ट है सर, आप प्लीज आप स्टार्ट करिए सर प्लीज, वी ऑल आर वेटिंग टू हियर टू। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और मेरा विश्वास है कि कोविड-19 की लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। जल्दी ही वैक्सीन मिल जाएगा, उससे हम सबको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, पर आर्थिक लड़ाई लंबी चलने वाली है। कुछ उसमें हमारे लिए ये आर्थिक लड़ाई लड़ते समय कुछ हमारे लिए स्ट्रेंथ भी है, कुछ दिक्कतें भी हैं। पर मैं ये मानता हूं कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो भी है उसमें निश्चित रूप से भारत जैसे एक विकास की प्रक्रिया में गतिशीलता लाने वाले देश के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और इसके लिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश में एमएसएमई को बढ़ाने का, ताकत देने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी, उनके सबके सहयोग से बड़े प्रमाण पर वो प्रयास भी किया गया है। एक बात जरूर है कि विशेष रूप से जो भी प्रॉब्लम ध्यान में आते हैं उसको रिजॉल्व करने की हमने कोशिश की है। ये जो पैकेज डिक्लेयर हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कल ही मेरी हमारे सचिव महोदय के साथ डिस्कशन हुआ है और मैंने ये कहा कि मैं इस मत का हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर परफॉर्मेंस ऑडिट इज 10 टाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। तो हमने जो घोषणाएं की है उसके बारे में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से होना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए विशेष रूप से हम ध्यान भी दे रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से कुछ बातें हमारे अधीन होती है तो हम निर्णय करेंगे, नहीं होती तो वित्त मंत्री जी को कहेंगे और आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री जी के कान पर भी डालकर उनसे सहयोग लेंगे। तो ये पैकेज का पूरा इम्प्लीमेंटेशन निश्चित रूप से होगा। जहाँ तक हमारी एमएसएमई है, वो जो पेमेंट्स का प्रॉब्लम जो है, जो ड्यू पेमेंट्स है उनके अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्रीज के साथ, भारत सरकार के साथ, भारत सरकार के अंडरटेकिंग के साथ और मेजर प्राइवेट सेक्टर के साथ, इसके बारे में पहले भारत सरकार ने तो पैकेज में जाहिर किया है कि 45 दिन में हमारे सभी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और अंडरटेकिंग एमएसएमई का पेमेंट दे देंगे। और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि आपके राज्य में आपकी मिनिस्ट्री और पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में आप भी इसी प्रकार का निर्णय करके ये जल्दी दीजिए। जो मेजर इंडस्ट्री है उनको मैंने कहा है कि आप पहले प्रायोरिटी से ये सब करिए और उन्होंने भी बड़े प्रमाण पर वो करने के बारे में उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया और काफ़ी लोगों ने उसके भी पेमेंट इशू किए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि अब ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें और दूसरी ओर फॉरेन कैपिटल को लेके आए। फंड ऑफ फंड में हमने अभी जो योजना बनाई है 50,000 करोड़ दिए हैं, इसमें अभी सेक्रेटरी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैंने उनको कल ही कहा था कि आप एक बार ये जो स्टॉक एक्सचेंज वाले, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जो प्रमुख लोग हैं इनसे भी सलाह मशवरा करिए। अपेक्षा ये है कि हमारी एमएसएमई का बहुत सिंप्लीफाई मेथडोलॉजी से हम रेटिंग करें और उसके लिए ऐसी कोई कमेटी होगी जो इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयरली होगी और वो कमेटी निर्णय करे कि किसको किसको अनुमति दे। वो उनके पहली इक्विटी में अप टू 15 करोड़ हम दे सकते हैं
और बाद में वो कैपिटल मार्केट में जाए, और कैपिटल मार्केट में ही, स्टॉक एक्सचेंज में ही एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज हो। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये भी बात अगर जाएगी तो फॉर मैं दुबई के इन्वेस्टर के साथ मेरी अभी बातचीत हुई 4-5 दिन पहले, तो मैंने उनको कहा कि हमारी अच्छी एमएसएमई है, एक्सपोर्ट करती है, प्रॉफिट है, उनका बैंक रिकॉर्ड, उनका जीएसटी का रिकॉर्ड और उनके प्रॉफिट्स और इनकम टैक्स के रिकॉर्ड सब अच्छे हैं, और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे एमएसएमई में आप जरूर इन्वेस्टमेंट करिए, जिसके कारण आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो उन्होंने भी कहा कि जरूर हम ये सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एमएसएमई में आए, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या इस समय लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी जब बड़े प्रमाण पर नहीं आएगी तब तक डिमांड एंड सप्लाई की चेन नहीं सुधर सकती, और तब तक हमारी इकोनॉमी की जो व्हील है वो भी गतिशील नहीं बन सकती। और इसलिए हमारे बैंकों के द्वारा, हमारे एनबीएफसी के द्वारा, हमारे सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार के द्वारा जितना पैसा ला सकते उतना तो लाएंगे ही, पर इस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी के थ्रू, बैंकों के थ्रू और एमएसएमई में आती है, एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आती है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम बड़े प्रमाण पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, और ये आने से ही हमारी इकोनॉमी की व्हील को हम एक्सेलरेट कर पाएंगे। एक बात इंपॉर्टेंट है जो मुझे कहनी है, जो मार्केटिंग के बारे में हमने प्रयास किया, पर अभी तक जेएम के सीईओ बैठे हैं, मुझे लगता है फिर दिक्कतें आती है, उनको भी अपनी मर्यादा होगी, और इसलिए मैंने भी सचिव महोदय को ये भी सुझाव दिया है कि हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का उपयोग करके कोई प्राइवेट कंपनी को कहे कि वो अमेजोन जैसा या अलीबाबा जैसा प्लेटफॉर्म तैयार करे, हमारे एमएसएमई उसमें रजिस्टर करे। प्लेटफॉर्म को तैयार करने के बाद उसकी ओनरशिप हमारी मिनिस्ट्री की कोई कारपोरेशन के पास रहे, और उसके ऊपर जो डील होगा उसका कमीशन उसको उनको प्रमाण में मिलेगा, और उसको हम लोग कुछ कोरियर एजेंसीज को या डाक डिपार्टमेंट, हमारा पोस्ट डिपार्टमेंट है, उनको डिलीवरी देने में उनका भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई मॉडल आप देखिए। तो मुझे लगता है कि यह पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के आज के ज़माने में सरकार में कोई निर्णय जल्दी होने में बहुत तकलीफ जाती है, और एक दूसरे को पूछता, दूसरे तीसरे को पूछता, चौथा ऑब्जेक्शन लेता, पांचवा और कुछ लिखता, और ऐसे करके और छठवां सब होने के बाद आखिर लिख देता है कि कैबिनेट में जाना पड़ेगा, तो फिर उसमें और 4 महीने जाते हैं। तो उसमें काम होने में मेरा ये सिस्टम के प्रति वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसको पब्लिक प्राइवेट इसके साथ हम लोग उसको खड़ा करें, इसके मोड़ पर हम काम कर रहे हैं, तो मार्केटिंग का भी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी हमको करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट को कम करना, और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, ये बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है एमएसएमई अब इस समय इसका भी फायदा ले। हमारे देश में हम लोग टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, और जहां हमारे पास नहीं है तो देश की टेक्नोलॉजी हम लाए, दुनिया से लाए, पर हम लोग, हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ जो चीज़ें इंपोर्ट होती थी, अगरबत्ती की काड़ियाँ, अब बदल गई। अब बड़े प्रमाण पर हमारे देश में रोजगार मिला, हमने ड्यूटी बढ़ाई है, कस्टम ड्यूटी चाइना से आई हुई, इस पर तो बहुत इंडियन इंडस्ट्री में यहाँ काफ़ी लोगों को रोजगार मिला। दूसरी ओर हम लोग ये जो पीपी किट है अभी इतना बना रहे कि एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिल रही है, और आप एक्सपोर्ट करने लगे, सैनिटाइजर एक्सपोर्ट करने लगे। तो हमारे इंडस्ट्री में एबिलिटी है, क्षमता है, और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप भी है। उनको सपोर्ट की आवश्यकता है बैंकों के द्वारा और सरकार के द्वारा, और अगर वो सपोर्ट मिलेगा तो मार्केटिंग में उनको बहुत अच्छा वो काम भी कर सकते, एक्सपोर्ट भी कर सकते, ये उनकी ताकत है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ आने वाले समय में सभी सेक्टर को उनके साथ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, उनकी बातों को ग्रास रूट लेवल की समस्या को लेकर समझकर उसको सुलझाना, यही हमारा प्रयास है। चैंपियन जो हमने अभी वेब पोर्टल खोला है, उसने कारण भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर काम पूरे हुए हैं। आज ही हमें 2-3 अच्छे बड़े बड़े रिपोर्ट मिले एमएसएमई में कैसे रिफॉर्म करें। मैं तो चाहता हूं कि पूरा सिस्टम डिजिटल बन जाए, ना कोई हमारे ऑफिस में आए, ना कोई परमिशन के लिए आए, ना कोई एनओसी के लिए आए, ना कोई लाइसेंस के लिए आए। इतने डॉक्यूमेंट पेश कर दो, इतने दिन में लेके जाओ।
ये पूरी सिस्टम को डिजिटलाइज करना ये भी एक बड़ा आह्वान है, और हमारे सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं, उनको भी पुराना एक्सपीरियंस अच्छा है। ये चैंपियन जो वेब पोर्टल बना उसमें उनका बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जल्दी ही हम इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, करप्शन फ्री सिस्टम, रेड टेबिज्म को पूरी तरह हटाकर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फास्ट करके हम पूरी तरह एमएसएमई के साथ खड़े रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनका भी सहयोग लेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये कठिन है पर असंभव नहीं है। अगर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया तो ये निश्चित रूप से हम पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए इसमें 2 बातों का आखिर में मैं आप सबको कहूंगा कि ये कोरोना के संकट के कारण, आर्थिक वार के कारण कुछ जगह निगेटिविटी आती है, निराशा, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो हमारी कैपिटल से, टेक्नोलॉजी से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो है कि ये पॉजिटिविटी। अब ये निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, निराशा को हटा दीजिए, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को अपनाइए और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से आगे जाइए। आत्मविश्वास के साथ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, पॉजिटिव इच्छा शक्ति, ये इसी को हम आत्मविश्वास कहेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई कठिन नहीं है, निश्चित रूप से हम हमारा गोल अचीव कर सकेंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम इसमें कामयाब होंगे, यशस्वी होंगे। और आप सबके सहयोग से लगातार जो भी सुझाव आते रहेंगे उसके ऊपर भी हमारी मिनिस्ट्री पूरी तरह सपोर्ट करेगी, यही विश्वास आप सबको मैं देता हूं। और फिर से एक बार यूनो ने डिक्लेयर किया था एमएसएमई डे। एमएसएमई डे हमारे लिए हार्टलाइन है भारत के लिए। हमारे देश के ग्रोथ में 29% ग्रोथ एमएसएमई की है, अब उसको 50% तक ले जाना है। हमारा एक्सपोर्ट 48% है, उसको 68% हमारा एमएसएमई को ले जाना है। हमने अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं, 5 करोड़ जॉब हमको नए क्रिएट करने हैं 5 साल में। हमारे विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 88,000 करोड़ है, 2 साल में उसको 5 लाख करोड़ करके एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को हम प्रायोरिटी देकर, जैसे डिकंजेशन ट्रैफिक का करना है वैसे इंडस्ट्री का भी करना पड़ेगा। नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर हम 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, उसके बाजू में हम जगह देने के लिए तैयार है और प्राइवेट लोगों के साथ उसको भी डेवलप करने की बात कर रहे हैं। मेरा विश्वास है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अगर बनेंगे तो बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, इन सीटों को भी, शहरों को भी हम लोग डिकंजेस्ट कर पाएंगे। सब जगह एक जगह आना, जो आता है वो नोएडा में जाता है, जो आता है वो गुड़गांव में जाता है, तो इससे काम नहीं होगा। अब हमको थोड़ा सा गाँव के और स्मार्ट विलेजेस भी बनानी पड़ेगी और उस बातों में भी आपका जरूर सहयोग आएगा, सहयोग मिलेगा। जहाँ तक ये जो ट्रेडर्स है उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि हमको उनके लिए भी कोई कैटेगरी तैयार करके, एग्रो एमएसएमई और ट्रेडर्स के लिए भी करके, उनको भी हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका सबका हमारे इकोसिस्टम में सबका इंपॉर्टेंस है। और सबको जब हम स्ट्रांग बनाएंगे तो ओवरऑल हमारा बेस स्ट्रांग होने वाला है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में विचार कर रहे हैं। एमएसएमई की व्याख्या बदल गई है, जिसके कारण काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला है, काफ़ी एमएसएमई को इसका सबका फायदा भी होने वाला है। तो फिर से एक बार आज के इस दिन पर आप सबके सहयोग से हम आगे जाएंगे। हम हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसमें एमएसएमई को भी हम लोग शक्तिशाली बनाएंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, नए रोजगार का निर्माण करेंगे और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इसकी भी चिंता करते हुए एक समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान हिंदुस्तान का निर्माण करना, इसका संकल्प करने के लिए एमएसएमई के सभी स्टेक होल्डर्स को मैं अनुरोध करूंगा। और आप सब लोगों ने ठान लिया तो मैं यही मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य पूरा होगा। फिर से एक बार आज के इस एमएसएमई दिन के उपलक्ष्य में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन बड़े इंस्पायरिंग शब्दों के लिए। और जो आपने हमें कहा है कि हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में काम करना है, हमें पॉजिटिविटी से काम करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखना है, मैं समझता हूं कि एमएसएमई भी कटिबद्ध है उन सब चीज़ों के लिए, ताकि जो आपने टारगेट दिए हैं, टारगेट सेट किए हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट के हों, जीडीपी के हों, जॉब क्रिएशन के हों, या
एग्री एमएसएमई के लिए हो, मैं समझता हूँ कि सब हम आपके नेतृत्व में और सेक्रेटरी श्री ए के शर्मा जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह से उन सब चीज़ों के लिए प्रयत्न करेंगे। आपने सर बड़े ट्रांसपेरेंटली बताया कि गवर्नमेंट में वर्किंग कैसे होती है, बट मैं समझता हूँ कि सर अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि अभी जो वर्किंग स्टाइल है वो एकदम बिल्कुल चेंज है और बहुत ही नई तरीके से और क्विक डिसीजन आपके जो लीडरशिप है उसमें हो रहे हैं। सर आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज को भी मिला के आप एक कमेटी बनाना चाहते हैं फंड्स ऑफ फंड्स की, तो अगर सर हमारा एक छोटा सा सुझाव है, अगर इस कमेटी में कुछ एमएसएमई के जो एसोसिएशंस हैं, जैसे हम भी अपने आप को सर ऑफर कर सकते हैं कि अगर उस कमेटी में कुछ एमएसएमई एसोसिएशंस को भी कोई जगह दी जाए तो वो भी जो एमएसएमई की समस्या है शायद उसको अच्छी तरह से रख सकें इस कमेटी के सामने। तो अगर ऐसा कुछ सर आप विचार कर सके तो हम बड़े आभारी होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, हम बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत नमस्कार सर, थैंक यू। दोस्तों बहुत बहुत हमने जो ये ओजस्वी विचार सुने अपने माननीय श्री नितिन गडकरी जी के, और हमने सुना अपने सेक्रेटरी श्री ए के शर्मा साहब को, तो मैं अपनी तरफ से और सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे साथ हैं, 2000 हमने रजिस्ट्रेशन ये हुए थे इसमें, और ये जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, ये जो पार्टिसिपेशन हुआ है, ये मैं आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये केवल एक दिन में हुए हैं। ये मतलब एमएसएमई जो हैं वो सुनना चाहते हैं हमारे आदरणीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को, हमारे माननीय सेक्रेटरी श्री ए के शर्मा जी को, उनको कितनी इच्छा थी उनको सुनने के लिए कि एक दिन में हम ये 2000 रजिस्ट्रेशन हमारे हो गए। इसके लिए मैं दिल से फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा दैनिक जागरण को, और दैनिक जागरण में खासतौर से श्री संजय गुप्ता जी को, शैलेन जेटली, सुमित रघुनाथ जी को, और टैली में श्री तेजस गोयनका जी को, किरण नायर जी को और ज्ञानेंद्र जी को मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस जो हम आज का ये इंटरनेशनल एमएसएमई डे मना रहे हैं, और साथ में टैली के श्री तुषार भारती जी का। और दोस्तों अब हम शुरू करेंगे एक पैनल डिस्कशन एमएसएमई के ऊपर, जिसको मॉडरेट करेंगे श्री आशुतोष झा जो है नेशनल ब्यूरो चीफ ऑफ दैनिक जागरण। और इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ होंगे श्री तेजस गोयनका जी, आप हैं मैनेजिंग डायरेक्टर टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के, और श्री प्रवीण खंडेलवाल जी। स्वागत है मेरा आशुतोष जी झा जी, आपको अब ये कमान आपके हाथ में होगी। मैं स्वागत करता हूं श्री तेजस गोयनका जी का। और तेजस जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह का ये जो इंटरनेशनल एमएसएमई डे है, इसको आपने संपन्न कराने में, आयोजन करने में आपका भरपूर सहयोग है। और आपकी जो टीम है, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे वो आपके किरण जी हों, तुषार जी हों या ज्ञानेंद्र जी हों। वो इतने दिल से लगे होते हैं, कई बार मुझे भी उनको कहना पड़ता है कि सर रात को 12 बजे तो फ़ोन मत करो आप, लेकिन वो नहीं मानते, वो 12 बजे मना करने के बाद फिर 12:30 बजे फिर कर देते हैं। तो ऐसी टीम आपके पास है। और साथ में जो दैनिक जागरण है, उनका हमारी जितने भी ये वेबिनार्स हैं उनमें एकदम बिल्कुल वो पूरे दिल से हमारे साथ हैं, तो मैं फिर धन्यवाद देता हूं। और साथ में मैं जो हमारी जो कुछ और एसोसिएशंस हैं, जैसे एसएमई कनेक्ट, AIMO, BIEA, वास्मे, IIA, CMA और कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनको मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके विचार भी हम सुनेंगे। पहले आशुतोष जी, आपके हाथ में कमान है, आप शुरू कर सकते हैं आज का ये पैनल डिस्कशन। धन्यवाद मुकेश जी। सुबह से आज आपको बधाई मिल रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की ओर से बधाई मिली, और उसके बाद हमारे मंत्री जी और सेक्रेटरी, चारों तरफ से आपको बधाई मिल रही है। हमारी तरफ से भी आप स्वीकार कीजिए बधाई। जितने एमएसएमईज आपके साथ जोड़े हैं सबको। और चूंकि समय कम है, समय को ध्यान में रखते हुए तो हम लोग बिल्कुल फोकस्ड अब तत्काल शुरू करते हैं एक छोटा डिस्कशन। कोशिश करेंगे कि 25 से 30 मिनट में हम लोग इसको फिनिश कर लें। लेकिन तेजस जी हमारे साथ हैं अभी, उनका चेहरा भी दिख रहा है, खंडेलवाल जी भी हैं। मुकेश जी, कई चीजें आई।
जो नितिन जी हैं, गडकरी जी जो मंत्री हैं, उनकी ओर से भी आई, आपकी ओर से भी ये लगातार चीजें आ रही मैं सर एक मिनट आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ यहाँ पर हमारे साथ शशि सिंह जी भी हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आपकी परमिशन हो तो हम उनको भी अगर इस पैनल डिस्कशन में अगर हम ऐड कर लें तो मुझे लगता है कि एक वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी इस पैनल डिस्कशन। बिल्कुल, पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो शशि जी का भी स्वागत है। मुकेश जी, ये जब से चर्चा शुरू हुई आज सुबह से, तब से बहुत पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी होनी भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कोविड के बाद बहुत निराशाजनक माहौल बना था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट आगे बढ़कर आई, सपोर्ट करना शुरू किया, एमएसएमईज ने हाथों हाथ लिया और लग रहा है कि उत्साह है। आपकी बातों से खास तौर से ऐसा दिख रहा है कि उत्साह। तो क्या, ये पहला सवाल मेरा आपसे ही है, चूंकि आप एमएसएमई के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सवाल आपसे ही है कि क्या आपको लगता है कि जितने कदम उठाए गए, क्योंकि सरकार के लिमिटेशंस होते हैं, उसके बाद एमएसएमईज अब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार है? देखिए सर, ऐसा है, ये जो समय है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय है। अगर हम देखें, अगर हम कोविड के समय से थोड़ा पहले चले जाएं, जब ये मार्च में यहाँ हिंदुस्तान में आया खासतौर से, उससे पहले भी कोई जो हमारी जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन है कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। ये नहीं था कि पहले हम बहुत तेज गति से दौड़ रहे थे और एक कोविड आया और ब्रेक लग गया और अब हम फिर दोबारा से, ये स्पीड ब्रेकर खत्म हो गया, अब हम दोबारा से शुरू हो सकते हैं। और ये जो समस्या थी ये हिंदुस्तान में नहीं थी, ये ग्लोबली हम देख रहे थे कि कोविड से पहले भी इकोनॉमी फ्रंट पर ग्लोबली भी पहले भी समस्या थी। ये कोविड ने आके उसमें एक तरह से पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था। अभी वो ब्रेक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोड़ना शुरू हुआ है। मैं ये कहूँ कि अभी हमारी जो एमएसएमई है पूरी तरह से तैयार हो गई हैं लड़ने के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, तो ये शायद ठीक नहीं होगा। पॉजिटिविटी से मेरा मतलब ये था कि हम अगर निगेटिव होकर बैठ जाएंगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो समस्या है वो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं साहब समस्या सारी खत्म हो गई, समस्या सारी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ जो एक्शंस हैं, जो सरकार जो कुछ एक्शन ले रही है वो अच्छे हैं। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि हम सबको मिलकर भी पूरी तरह से अपनी तरफ से भी एक्शन लेने पड़ेंगे। जैसे मंत्री जी ने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हमें काम करना पड़ेगा, हमें जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम चाइना का तो कहें कि हम चाइना का बाइकआउट कर देंगे, लेकिन यहाँ ना हमारे पास क्वालिटी हो ना हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, तो आप बताइए हम उसको किसी तरह नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हमें अपने आप से भी हर किसी को, अगर हर भारतवासी, हर एमएसएमई अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रयत्न करते तो ये पॉजिटिविटी बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ऐसे ही बनी रहेगी और आगे। ये बिल्कुल, पॉजिटिविटी के बिना कुछ हो नहीं सकता, हमें साहस के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये गडकरी जी की बातों में भी आया था, आपने भी कहा, और ये सबका सवाल है कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब तक टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस नहीं करेंगे, चीजों से, चुनौतियों से रूबरू नहीं हो पाएंगे। हमारे साथ तेजस जी हैं जो टैली से हैं और सॉल्यूशंस बनाते हैं, तैयार करते हैं। तेजस जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या आज की स्थिति में जो बदली है परिस्थिति और जिस तरीके से नए चैलेंजेस सामने आए हैं, उसके बाद एक तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं और इससे जूझने के लिए आपने क्या तैयारी की है आगे की? जी आशुतोष जी, तो मैं थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी में बात करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दो क्वेश्चन आपने पूछे। फर्स्ट पॉइंट इज कि what steps have we taken and how businesses can operate technology. So in the last 90 days, we have taken steps to offer our software free for many of our customers. करीबन 1 लाख लोग के आसपास डाउनलोड करे हैं, यूज भी करे हैं। I think that has helped a lot for many people who are wanting to upgrade and start using technology. बहुत लोग घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये that has helped a lot. And third thing that we have been doing in the last 90 days is actually helping a lot of businesses get educated on the benefits of technology. तो रोज हम 3-4 वेबिनार करते हैं जहाँ पे बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है. We don't talk only about Tally, we talk about many things that can help you upgrade and actually work from home productively.
So these are some of the steps that we have taken in the last few days. And second thing is, if I look at how can a business actually upgrade and how can a business actually use technology, again 3 or 4 aspects are there. First, ये reality है कि आज के दिन में हमें घर से काम करना पड़ रहा है, जितना भी कर सकते हैं. So we have to realize that the office environment is not the only environment that we can work in. And investing in technology for the future, where teams will also be working from home, teams will also be working from the office, will be very, very critical. The second is that if you look at the kind of technology that can make a difference, we have been thinking about money. The situation has made us think about money in a very, very different way. पैसा अटका हुआ है, वो तो reality है. Easy availability भी नहीं है, liquidity की. It's taking some time to be able to get cash. We are requiring to spend cash, keep our teams in place, and it's not going to be an easy future. So the perspective of money has changed drastically in the last 3 months. And I think thinking about money in 2 different ways, कि अच्छा investment कहाँ पे है or where can I stop investing, I think these are the 2 big things that technology can actually help you manage here also. So Ashutosh ji, I don't know if that answers the question. अगर कोई follow up है तो मैं खुश होऊंगा आंसर करने के लिए, प्लीज. We'll certainly come back to you again, क्योंकि अभी तो कई चीजें आएंगी, कई चीजें उभरेंगी, दूसरे के जब जवाब आएंगे तो इसके साथ में. लेकिन ये सवाल मेरा शशि जी आपसे भी है, मुकेश जी आपसे भी है. 3 लाख करोड़ के पैकेज की बात हुई, शायद 31 अक्टूबर तक इसका डेडलाइन है कि तब तक आपको इसको अवेल करना है. लेकिन अब तक पिछले 1 महीने में ये देखने में आ रहा है कि बेसिकली ये सवाल उठे थे कि हमारे पास नहीं है, लिक्विडिटी की बात हो रही थी, लेकिन लोन लेने के लिए बहुत उत्साह दिख नहीं रहा है. क्या सचमुच ऐसा है, और अगर है तो क्यों है ऐसा? मैं अगर इसका जवाब देना चाहूँ, देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं अभी एसेंशियल कमोडिटीज में हैं. कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जहाँ पर लगता है, जैसे अगर आप ऐसे समझिए कि कोई रेस्टोरेंट बिजनेस में है, कोई ट्रैवलिंग बिजनेस में है, कोई हॉस्पिटलिटी में है, उनको अभी ऐसा लगेगा, वो चाहे एमएसएमई सेक्टर में है, पर उनको अभी ऐसा लगेगा कि भैया अभी ये लोन लेने का अभी कोई हमें फ़ायदा नहीं है, अभी तो हमारे बिजनेस बंद है, तो अभी हम ये लोन ना लें तो अच्छा है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है. ये बल्कि अच्छा पॉजिटिव अप्रोच दिखाता है, मैं समझता हूँ एमएसएमई की, कि वो ये नहीं समझ रहे कि ये लोन नहीं है, गिफ्ट है, ले लो भैया. वो ये समझ रहे हैं कि ये जो है लोन है, इसको वापस करना है और ब्याज के साथ वापस करना है. तो जहाँ जिसकी जरूरत है वो लेकिन लोन कोई ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं होता कि कोई सामान आपको लेना ही पड़ेगा. ये एक ऑफर है सरकार की कि भाई अगर आपको जरूरत है आप अपनी इंडस्ट्री की लोन लीजिए. लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भी लोन ले रही हो, करें कि नहीं ले रहे तो ये कुछ गलत हो गया. मैं कहूँगा ये अच्छी बात है अगर वो एमएसएमई ये समझ रही है, प्रूडेंटली वो डिसीजन ले रहे हैं कि भाई हमें लोन की जरूरत है या नहीं. कुछ आज भी ऐसी इंडस्ट्री है जो अच्छी तरह से चल रही हैं, तो उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो ग्रोथ भी कर रही है. जैसे हमने सुना अभी तेजस जी को भी, तो इसकी बहुत सारी इंडस्ट्री को लोन की जरूरत नहीं है. आई सपोज दिस इज अ गुड अप्रोच ऑफ द एमएसएमई. इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है. बुराई की बात नहीं है, ये अच्छी है, क्योंकि ये जिज्ञासा थी लोगों में. जो सीधे तौर से एमएसएमई से नहीं जुड़े हैं उनमें ये जिज्ञासा थी कि आखिर ये उत्साह की कमी क्यों है. शशि जी, मेरा भी आपसे भी यही एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के ये हमेशा से बात रही है कि उनके सामने कुछ चुनौतियां ज्यादा बड़ी हो जाती हैं. जी महिलाओं की मैं महिलाओं की तरफ से थोड़ा सा आप लोगों को जागरूक करना चाहूँगी कि महिलाएं हमेशा हर वक्त पे मैं बोलूँगी कि आत्मनिर्भर होती ही हैं.
इतनी सारी परेशानियां उनको, ये नई परेशानी नहीं है, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियां आती हैं और बहुत खूबी से उनको उनका सामना करती हैं। अब जो ये परेशानी एक एडिशनल परेशानी है, बट इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया है। हम गांव-गांव में जाते हैं, हमारी जो कम्युनिटीज हैं रूरल एरियाज में बिखरी हुई हैं, लेकिन एकजुट होकर काम कर रही हैं। और क्या करा है, ये डिस्ट्रप्शन जो आया है इनकी जिंदगी में, इसको बहुत अच्छी तरह इन्होंने एक फेस ऑफ करा है। मतलब इन्होंने कहा कि इसको अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, तो ये नई अपॉर्चुनिटी को इन्होंने अपनाया है। इसमें क्या है, फायदा हुआ इनको कि न्यू एवेन्यूज खुल गए हैं। ये अपॉर्चुनिटीज में न्यू टेक्नोलॉजीज की जो बात हो रही है, इसमें नई किस्म के, जैसे सपोजिंग मास्क है, अगर इन्होंने फेस मास्क बनाने शुरू करे हैं और बहुत अच्छी तरह से डिजाइनर फैशन वेयर फेस मास्क, इको फ्रेंडली फेस मास्क बनाए, ग्लव्स बनाए हैं, डिसइंफेक्टेंट बनाए हैं, हर्बल नॉट अल्कोहल बेस्ड। सो यू नो देयर आर मेनी थिंग्स जिसमें अब न्यू ओपनिंग्स आई हैं इनके लिए। इन्होंने कम्युनिटी किचन्स खोले हैं जो इन्होंने फ्री में बांटे हैं। हमारा सबसे पहले ये था कि गवर्नमेंट अगर इन लोगों को ऑर्डर्स देती कहीं और जाने के बजाय, ऑल्दो नॉट ऑल ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विद जेम, लेकिन अगर इनको ऑर्डर्स मिल जाते, इनके हाथों में पैसा भी आता और इनके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है ऑफ स्टिचिंग, वीविंग, एनीथिंग टू मेक एवरीथिंग, तो इनके पास जो स्किल है उस हुनर को हम लोग यहाँ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर कंट्री में इन्वॉल्व कर लेते। तो हमारा ये था कि अगर गवर्नमेंट साथ लेती ये 50% ऑफ पॉपुलेशन जो विमेन है इनको, तो साथ मिलके और अच्छी तरह हम लोग रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन में प्रोसेस में काम करते हैं। जो आपकी बात आई है कि मनी फाइनेंस की, तो फाइनेंस हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम विमेन के साथ, लेकिन इस वक्त आई थिंक सब लोग अपने आप को बचा रहे हैं कि जो नया काम शुरू कर रहे हैं अपनी पूंजी से ही थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बिकॉज दे आर अनश्योर ऑफ द मार्केट। अगर वो कुछ नया चीज करते हैं तो मार्केट की डिमांड क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो अब क्या हो रहा है, इस डिस्ट्रप्शन में हम लोग इनको सिखा रहे हैं। यहाँ पे हमें एक और प्रॉब्लम आ रही है डिजिटल डिवाइड की, क्योंकि रूरल एरियाज में जो हमारी कम्युनिटीज हैं उन तक हमें, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। सबके पास ये सिस्टम नहीं है जो हम लोग जूम और इंटरनेट की है। तो एक मोबाइल बैंक की भी बात आई है कि हम लोग मोबाइल्स खरीद के और सबको डाउनलोड करके ऐप दिया जाए सो दैट वी कैन कनेक्ट विद देम, क्योंकि जो ये सारी पॉलिसीज बन रही हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो हम आप बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, उनके लिए कर रहे हैं, पर उनको फायदा तभी होगा जब वो जानकारी होगी उनको। एंड देन देयर इज अ बिग डिवाइड बिटवीन हम लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं और जो टेकर्स हैं। आप बोल रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं, बैंक्स नहीं दे रहे हैं, छोटे लोगों को नहीं मिल रहा है अभी, है ना। देखिए अब देयर इज जो उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन, आप पॉलिसी बना ली है लेकिन इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, ये बहुत जरूरी है। तो ये तभी आएंगे जब बैंक बोलेंगे आइए हम लोग वी आर रेडी टू गिव यू एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है अभी, क्योंकि मेरी जानकारी में तो इसमें लो इंटरेस्ट रेट ही रखा गया है, और जैसा अभी मंत्री की ओर से भी कहा गया था कि ये इम्प्लीमेंटेशन पर उनका ज्यादा फोकस है। और आज के दिनों में फिलहाल मैं देखिए शशि जी इससे बहुत सहमत नहीं हूं कि जानकारी नीचे तक नहीं पहुंच रही है। जानकारी बहुत तेजी से पहुंच रही है, जो डिजिटल जो जमाना बदला है उसके लिहाज से। लेकिन देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आत्मनिर्भर बनना है। जो स्थिति बनी उसके बाद कैसे हमें खड़ा होना है। आत्मनिर्भर बनना एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है कि हमें न सिर्फ खड़ा होना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। यानी देखिए, और इसमें मैं सबसे पहले खंडेलवाल जी के पास आऊंगा, क्योंकि जो प्रेजेंट चाइना के साथ कंटेक्स्ट बना, उसमें कई तरीके की बातें आ रही हैं कि चाइना को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपने पैरों पर खड़े हों, लेकिन इसके लिए टाइम भी लगेगा। एक बार ही ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो है खंडेलवाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे है और थोड़ा क्रिटिकल सवाल आपसे है कि
जो माहौल बना चाइना के खिलाफ, उसके बाद एक फैसला हुआ कि जो होटल्स हैं वो चाइनीज के लिए जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए बंद कर दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के फैसले इंडस्ट्री के लिए सही है? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस देखिए, मैं आभार मानता हूँ मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और आपने जो प्रश्न किया है, एक ऐसे समय में जब पड़ोसी देश एक तरफ समझौते की बात करता है और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो अपनी सेनाओं का जमावड़ा कर रहा है, और देश के लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि ये बदमाश आदमी है, ऐसे में ये कहना कि अगर होटल में चीनी नागरिकों को प्रवेश नहीं मिलेगा तो ये देश के खिलाफ जाएगा, मैं इस आर्गुमेंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं। यह आंदोलन हमने 10 जून को शुरू किया पूरे देश के अंदर, और आज एक समय है जब पूरा देश एकजुट है, भावनाएं उबाल खा रही हैं, और ऐसे में एक मजबूत संदेश दिया जाना बहुत जरूरी है। और जब हम मजबूत संदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं हमको उन सब चीजों का उपयोग करना पड़ेगा जो हमारे देश को आर्थिक गुलामी की ओर एक नेशन ले जाने की चेष्टा कर, और उसके इस काम में वो अकेले जिम्मेदार नहीं है। हमारे देश की सरकारें, हम व्यापारी और हमारा उद्योग, हम भी कम जिम्मेदार नहीं है, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हमने 20 वर्षों के अंतराल में सन 2001 से लेकर के 2020 तक हमने चाइना के अलावा दूसरे कोई विकल्प को तलाश ही नहीं किया। हम चाइना से ही संतुष्ट हो गए, और आज जब चाइना हमारे घरों के अंदर पहुंच गया, हमारे बाथरूम के अंदर पहुंच गया, तो अब हम एक रात में उसको हटाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, और खास तौर पर मुझे बड़े उद्योगों से कोई बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे इस देश के लघु उद्योग से बहुत उम्मीद है। अगर सरकार थोड़ा भी हाथ पकड़ ले, और हमारी डोमेस्टिक स्मॉल इंडस्ट्री को अगर जितनी सुविधाएं चीन में मिलती हैं उसके 10% भी दे दे, तो हम चाइना को परास्त कर सकते हैं। अभी का जो एग्जाम्पल है कि जब कोविड शुरू हुआ तो उससे पहले हमारा देश पीपी किट नहीं बनाता था, मास्क नहीं बनाता था, वेंटिलेटर नहीं बनाता था। लेकिन ये खंडेलवाल जी देखिए, ये चीजें हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, चूंकि समय कम है इसलिए बिल्कुल फोकस्ड होना चाह रहे थे कि आपने इस तरीके का फैसला लिया। बात हो रही है, जब आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है, यानी खड़े होना है, तो उसमें किस तरीके से चाइना को धीरे धीरे मार्केट से बाहर करना है, हमें उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, न कि इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये विचार अलग अलग हो सकते हैं, आपके विचार आप उसी पर रहेंगे, ये मेरे विचार थे इसलिए मैंने उस तरीके से सवाल पूछा। लेकिन अगला सवाल मेरा देखिए मुकेश जी आपसे इसी विषय पर है कि खंडेलवाल जी ने एक तर्क दिया कि चाइना को बाहर करने का रास्ता ये हो सकता है, शुरुआत यहाँ से हो सकती है। एमएसएमई के सामने चैलेंजेस बहुत हैं कि कच्चे माल पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, वहां पर एक बार भी कोई फैसला लेना नहीं संभव होगा। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके से बिल्कुल फैसला हो कि नहीं, हमें अब चाइना के मार्केट को छोड़ना है, कहीं और तलाशना होना है, इसमें कितना लंबा समय लग सकता है? मैं समझता हूं कि ये हमें दो देशों के झगड़े वाली बात यहाँ पर मैं नहीं समझता। ये कमर्शियल डिसीजंस हैं, इसमें दो देशों का झगड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि दो देशों के झगड़े से हम कहें कि हम इस जैसे बच्चों की तरह से होता है कि अब हम इस दुकान से माल नहीं खरीदेंगे, इस जगह से माल नहीं खरीदेंगे। हमारी शायद अभी मजबूरी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल खंडेलवाल जी ने ठीक कहा कि भाई हम पीपी किट्स पहले नहीं बनाते थे, अब बनाने लगे, हम मास्क नहीं बनाते थे, हम नहीं बनाने लगे, जब हमें जरूरत हुई तो हम उसका प्रोडक्शन करने लगे और अच्छी क्वालिटी से और अच्छी टेक्नोलॉजी से करने लगे।
मैं समझता हूँ कि पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आज हम देखते हैं छोटी चीजों के लिए तो हम दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। ये जो आत्मनिर्भर का नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया है, मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को बिल्कुल तैयार करना पड़ेगा। दो चीज जो मंत्री जी ने खासतौर से बोली थी कि हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए काम करना पड़ेगा और क्वालिटी। मैं समझता हूँ ये इशारा था इसी ओर कि भाई अगर हम ये दो चीजों में हम अगर जीत हासिल कर लें, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए। आप बताइए, अगर एक कस्टमर है, अभी तो हम केवल भावनात्मक रूप से कह रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पर जो चाइनीज माल है उसको मत खरीदो, लेकिन अगर भारत क्यों नहीं खरीदे वो, अगर उसको सस्ता मिल रहा है, कोई टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये सब बायकॉट करना देशभक्ति के रूप में एक बार आदमी सोच सकता है, 2 बार सोच सकता है, लेकिन उससे कोई देश विरोधी काम भी नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि अगर हम बाजार जाते हैं, हमें ऐसा लगेगा कि जो भारत का मेड इन इंडिया का जो सामान है भैया, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, क्यों खरीदेंगे हम? चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएसए हो, हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो हमें क्रिएट करनी है एक ऐसी अपने यहाँ पे फैसिलिटी जहां पर हमारा प्रोडक्ट कंपेरेबल भी हो और कम्पिटिटिव भी हो। तो मैं समझता हूँ इस ओर हमें सबको ध्यान देना पड़ेगा, हम सबको लगना पड़ेगा, बजाय इसके मैं समझता हूँ कि हम कहें कि हम ये खरीदें ये ना खरीदें। चॉइस शुड बी ओपन टू एवरीबडी। और हम ये कहें कि भाई जो माल अच्छा है, देखो भारत का माल अच्छा है, भारत की क्वालिटी अच्छी है, भारत की टेक्नोलॉजी अच्छी है। हम देखते हैं अपना, अगर हम देखें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, हमारा जो टैली है भारत का प्रोडक्ट है। हम जो आज आप देख लीजिएगा कि कितने % लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस में हैं, वो टैली यूज कर रहे हैं, भारत का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है सस्ता है, अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो भैया हम इसको यूज करेंगे, किसी बाहर के हम प्रोडक्ट को क्यों यूज करें। तो हमें मुझे लगता है कि ठीक है, हमें देशभक्त होना है। मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ पे कोई ऐसा ना समझे कि मैं देशभक्त नहीं हूँ। देशभक्त हम सब हैं, हम किसी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, अपनी अपनी सोच है। लेकिन मेरी सोच तो यही है कि हमें अपने प्रोडक्ट को कंपेरेबल और कम्पिटिटिव बनाना है, प्राइस में और क्वालिटी में। हमारे साथ यहाँ पर आशुतोष जी, रवि मित्तल जी हैं, वो सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से हैं। हो सकता है वो भी अपने कोई विचार, अगर आप उनको चाहें तो उनसे भी कोई एक विचार ले सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उससे लूंगा। लेकिन ये जो आपसे मैंने सवाल किया, यही सवाल मेरा मिस्टर तेजस से भी है कि हाउ डिफिकल्ट डू यू फाइंड इट और हाउ कॉम्पिटिटिव डू यू फाइंड इट टू इन द मार्केट? कंपटीशन तो रहेगा और कंपटीशन रहना अच्छा है. I mean, it is a very good thing that competition is there. It pushes companies to do better and do more. I think from the software side, we have, we have been very, very focused on making core technologies in India. In fact, we don't use a single thing that is outside of India. Our database is made by ourselves. Our memory manager is made by ourselves. And the reason that we have done it is because we understand. आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए. इन टुडेज वर्ल्ड, in my last session and the last question that you asked me, my video went off 3 times. मुझे पता नहीं है क्या हुआ है, क्यों हुआ है. It was reliable. Today also when we are working from home, internet is not reliable, power is not reliable, and this is a reality. And running a software for an environment like this doesn't necessarily exist in the Western world where we traditionally buy software from. So for us, innovation is a necessity in order to serve a market like India. And I think as long as people are focused on making sure that technology is and innovation is done for that from that means, I think that's the way we think about competition also. Competition comes from everywhere. Global competition comes, local competition comes, but innovation actually wins. And I think that this time in the last 90 days also has taught us that next few years, if you are focused on that one core point, I think we'll emerge as a much stronger nation. Yeah, certainly. That's what. जैसा अभी कहा मुकेश जी, रवि जी जुड़े हैं हमारे साथ. कुछ इसमें ऐड करना चाहती थी. If you can be very short, please. On innovation and creativity, I think we already have a GI tag which is called the geographical indicator. They were already handmade in India. Now what happened कि gradually जो Chinese silk yarn वगैरह, beads आ गए, glass beads आ गए, leather भी आ गया, सब कुछ उसके अंदर इंटीग्रेट करना. उस टाइम पे हम लोग ने बोला था स्टॉप करो इसको, लेकिन अब क्या हो गया. हाँ, रवि जी बोल रहे हैं. रवि जी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ.
मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बात आ रही है कि ठीक है कि लिक्विडिटी के लिए कुछ इंतजाम कर देना सही है, लेकिन रिफॉर्म्स की ज़्यादा बड़ी ज़रूरत होगी, जिसकी बात बार बार हो रही है कि चाइना में आखिर क्यों ग्रो किया और इंडिया क्यों नहीं उस तरीके से ग्रो कर पाया जिस तरीके से चाइना ने किया। तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मेरा आपसे यही सवाल है कि आज के पर्सपेक्टिव में, और ये सवाल आप मुकेश जी आप भी इसका जवाब देंगे एमएसएमई की तरफ से, कि आज के समय में अगर हम एक दो स्पेसिफिक रिफॉर्म्स की बात करें कि ये तत्काल रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो वो क्या है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है वो ये है कि एमएसएमई का अगर सही मायने में देखा जाए तो प्रॉपर गाइडेंस की अभी भी कमी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कोई भी एमएसएमई अगर आप सही मायने में देखेंगे तो उनको आज फंडिंग की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। और आज एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो कि पूरे इंडिया के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो दैट इज ओनली एमएसएमई है, क्योंकि आज कोई लार्ज स्केल की इंडस्ट्री आने की हमारे देश में बहुत कम संभावना है जितनी हमारे एमएसएमई में ग्रोथ की संभावना है। इसलिए अगर उस पर थोड़ी रवि जी, इसको तो गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि जो एमएसएमई है वो ग्रोथ इंजन है इंडिया का, और इसीलिए प्रायोरिटी दी जा रही है एमएसएमई को। मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे ये है कि क्या आप कहेंगे कि एक दो रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए कि ये 2 रिफॉर्म्स कर दिए जाएं तो एक बार की हमें तेजी आ जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, माहौल बदलेगा, वो 2 रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं? देखिए साहब, मैं तो यही आपसे बताना चाह रहा हूं कि आज देखिए हम एसएमई में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज जब हम समझिए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जब उससे हम रॉ मटेरियल खरीदने की बात करते हैं तो हमें कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिलती है। आज कॉरपोरेट सेक्टर जो बड़े सीमेंट प्लांट वाले हैं उनको जो है कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो हम कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज एमएसएमई में जो है वो एक जो ग्रोथ आना चाहिए वो ग्रोथ नहीं आ पा रहा था। आज भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे को पब्लिक सेक्टर वाले ये कहते हैं कि साहब एमएसएमई से जब हम खरीदते हैं तब हमारी 15% की प्राइस प्रेफरेंस है, लेकिन जब मैं उनसे रॉ मटेरियल खरीदता हूं तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि कोई प्राइस प्रेफरेंस है कि नहीं है। आज तक ये बात की क्लैरिटी नहीं हो पाई है। आप ये बताएं कि आज अगर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो एमएसएमई को कोई प्राइस प्रेफरेंस उसमें है कि नहीं है। मैंने रवि जी देखिए, यहाँ पर कोई अथॉरिटी इस समय नहीं है कि वो आपके सवालों का जवाब दे, तो अपने सवाल पूछने का समय नहीं है आपके। नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं सजेशन दे रहा हूँ साहब, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सजेशन दे रहा हूँ। यहाँ वो बात नहीं है, ये पैनल डिस्कशन है, आप इसकी गरिमा को समझिए। मेरा कहने का मतलब है कि एमएसएमई के ग्रोथ में जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ साहब, मेरे कहने यहाँ पैनल डिस्कशन। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप सवाल का जवाब दें। मुकेश जी, आप कुछ कहेंगे क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है एग्जैक्टली? देखिए, मेरा आशु जी आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आप कह रहे हैं कि भाई कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। तो मैं कहूँगा कुछ तो रिफॉर्म्स पर काम कर रही है सरकार। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है जो मुझे समझ आता है, एक लॉ रिफॉर्म जो है ना, लीगल रिफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे अभी मंत्री जी ने भी कहा कि भाई जो सरकार है वो कैसे काम करती है, किसी ने अप्रूवल दी और किसी ने नहीं दी, किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया और करते करते आखिर में किसी ने कह दिया कि भैया कैबिनेट। इसी तरह जो लीगल जो सिस्टम है हमारा, वहाँ पर जो मैं समझता हूँ ये एमएसएमई सबसे ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि इनको, जैसे रवि जी भी ने भी अभी कह रहे थे कि कभी भी कोई समस्या आती है वो किसी कोर्ट जाते हैं, चाहे वो डिलेड पेमेंट की हो या कोई और हो। इसी तरह जो आईबीसी के लिए मैंने मंत्री जी के सामने भी कहा था कि आपने 1 लाख का जो डिफॉल्ट है उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया, उससे एमएसएमई परेशान है। मैं समझता हूँ जो लीगल रिफॉर्म है, ताकि अगर कोई एमएसएमई को कोई समस्या हो तुरंत उनकी समस्या का समाधान अगर ये लीगल तरीके से, अदरवाइज तो बेचारे कोई चेक डिसऑनर होता है तो वो बेचारा पता चलता है कि 10 साल वो उसी में अटका रहा। तो ये लीगल रिफॉर्म इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होने चाहिए। और इसी तरह लीगल में ही कुछ टैक्स के रिफॉर्म्स बड़े जरूरी हैं। जैसे जीएसटी में मैं समझता हूँ कि अभी तक जो सिस्टम है वो ये है कि जब हम बिल कोई रेज कर देते हैं तो तुरंत उसका जीएसटी जमा करना होता है, जबकि वो जीएसटी मिले या ना मिले। तो एक जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है कि जब पेमेंट बेसिस पर हो। तो कुछ अगर मैं समझता हूँ ये 2 रिफॉर्म्स हो जाएं तो शायद काफ़ी मददगार साबित होंगे ये एमएसएमई से। जी।
देखिए, अब क्या है कि समय बिल्कुल हमारे पास कम है, मुश्किल से 5 मिनट है जिसमें हम लोग ये रैप अप करेंगे। लेकिन ये बात, एक जो थीम आप सबकी बातों से उभर के आ रहा है कि कुछ चीजें हो गई हैं, कुछ चीजें और होनी है, और बाकी हमें अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हम धीरे धीरे बढ़ लेंगे और खड़े होंगे। ये सवाल मेरा, देखिए, आप सभी से है, अगर छोटे इसमें कह सकें बिल्कुल 2-2, 3-3 लाइन में, कि वे फॉरवर्ड यहाँ से आज के दिन से आगे का वे फॉरवर्ड आपने क्या देखा है, क्या सोचा है कि आप अपने लेवल पे क्या करेंगे? मैं अच्छा मुकेश जी, आप बोलिए आप पहले बोलिए। मैं ये कह रही थी कि गांव की ओर की बात हुई थी। सबसे पहला जो स्लोगन निकला था कि चले गांव की ओर, क्योंकि देखिए अगर आप लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट और अच्छा स्ट्रेंथन करेंगे तो वहाँ की कम्युनिटीज वापस क्यों आएंगी, माइग्रेशन कम होगा, इक्वल ग्रोथ होगी कंट्री की, और वहाँ के लोगों को पनपने का अवसर मिलेगा। अब वो लोकल, यहाँ पे डिजिटल की बात भी आई थी कि वहाँ पे डिजिटल क्रिएशन करना बहुत जरूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महिलाएं कहाँ जाती हैं, अपने अपने घरों में करती, फिर इकट्ठा होकर एक जगह आती, कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स नहीं बने हुए हैं, है ना। हर अगर गांव को, अच्छा एक गांव या एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, एक प्रोडक्ट ले लो, इतना अच्छा आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो it is comparable to any other product in the world market. So we have the capacity, infrastructure create करना है, communication और market हम चाह रहे हैं कि लोकल एक मार्केट भी हो, कि लोकल हब्स क्रिएट करे जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सचिन जी, जो अगर डाटा की बात करें तो पिछले दिनों में ये डाटा उभर कर आ रहा है, और खुद पीएम ने कहा है कि आजकल जो डेटा का कंजम्पशन हो रहा है, जो इंटरनेट हम बात करते हैं, डेटा कंजम्पशन गांव में ज्यादा बढ़ गया है। जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो करीब 400-500 गवर्नमेंट ने अलग अलग जगहों पे, सारे जगहों पे खोल, चीजें हो रही हैं। मेरा अभी स्पेसिफिक आप सभी से सवाल यही है कि अभी आज से अगर हम ये करें कोशिश, आज आप इंटरनेशनल एमएसएमई डे मना रहे हैं, आज से पॉजिटिव होते हुए अगर कोशिश करें तो आपको क्या लगता है यहाँ से हमें अब किस ओर बढ़ जाना चाहिए जिसमें अपना एफर्ट भी शामिल हो? मुकेश जी बताइए। तेजस जी से मैं पहले जानना चाहूंगा सर। तेजस जी बिल्कुल बताइए तेजस जी। हाँ जी, 2-3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी हैव टू बी अपॉर्चुनिस्टिक, वी हैव टू लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट एज अ डिफिकल्ट टाइम। इन जनरल, इन डिफिकल्ट टाइम्स न्यू आइडियाज कम। मैं एक एग्जांपल लूंगा। हमारे कॉल सेंटर है दैट वी एम्प्लॉय अबाउट 1000 पीपल इन बैंगलोर। वी हैव टेकन अ डिसीजन दैट वी विल नॉट need them to work from Bangalore anymore, and we will be able to support them working from anywhere. So now I can hire a person from Meerut, they can work for 4 hours and they can get a good salary. I can hire a person from Saharanpur, nobody needs to come to Bangalore to do this. So taking certain decisions like this to be able to make sure that we don't look at this time as a difficult time, but look at it as an opportunity to transform for the future. The second thing that we will be doing is focusing on innovation as a company. It's not going to be easy, but these are times when ideas have to come out. As a nation, we have to become stronger. As a nation, we have to support each other, and it's our responsibility to be able to innovate. I think that this 90 days that has gone by has told us one clear thing: that the next few days will be unpredictable. We have to treat it as unpredictable, which means, and we still have to survive. So I think a lot of responsibility, I think the government has done a great job in taking out certain steps. I think a lot of responsibility comes on us to be able to make sure we can do better for ourselves. So those points, I think these are the main 2 points from our side. Very positive response. Very positive response that is needed for the country. खंडेलवाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? खंडेलवाल जी शायद नहीं अभी। अच्छा, वो कर गए हैं, तो मुकेश जी आप बताइए। मैं हाँ सर, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि 2-3 चीजें जो आपने कहा, तो एक तो ये कि हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। कठिन समय हमारी परीक्षा का असली घड़ी होती है। कठिन समय में हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हर समय सरकार की ओर मुंह उठाकर नहीं देख सकते कि साहब सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। हमें अपने से प्रयत्न करने पड़ेंगे। जैसे अभी तेजस जी ने भी कहा कि भाई उन्होंने डिसीजन लिए कि साहब आप यहाँ से काम कर लो, वहां से काम कर लो, घर से काम कर लो,
तो इसी तरह के नए इनोवेटिव हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो हमें अपने से करना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार है वो सबके जेब में पैसे नहीं डाल सकती। देखिए, हमें सरकार की भी मजबूरी समझनी पड़ेगी। तो हम सब मिलकर, अगर हम देश किससे, देश हमसे है, अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि भाई हम इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएं, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हम कॉस्ट कम करें, अपने मार्जिन कम होते हो तो भी कोई बात नहीं है, वो देश सेवा होगी सबसे बड़ी। तो 2-3 चीजें, एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, अपने से हम जो कर सकते हो वो करें, और तीसरी सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आशुतोष जी, अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए खास तौर से, कि जो एक टेली ने और दैनिक जागरण ने भी शुरू किया है ये एक मुहिम की भाई, उन्होंने भी बताया, तेजस जी ने भी, कि भाई हम लोग बहुत सारे वेबिनार्स करते रहते हैं, बताते रहते हैं, और वो उसमें खाली टैली के बारे में नहीं बताते। इसी तरह दैनिक जागरण है, वो भी बहुत सारे इवेंट्स में हमारे साथ वेबिनार कर रहा है। दैनिक जागरण के बारे में नहीं बोलते उसमें, वो बोलते हैं कि एमएसएमई को क्या स्कीम्स हैं, उनका फायदा कैसे ले सकते हैं। ऐसे ही तेजस जी कर रहे हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर वो कोई टैली का कोई पब्लिसिटी करने नहीं आए हैं, यहाँ पर वो एमएसएमई की मदद करने के लिए आए हैं। इसी तरह आप आए हैं, नेशनल ब्यूरो चीफ फ्रॉम दैनिक जागरण, तो आप कोई दैनिक जागरण के लिए आपने कुछ नहीं बोला है, आप एमएसएमई की मदद करने के लिए, एमएसएमई को अवेयर करने के लिए आए हैं। इसी तरह चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने, मैं बताऊं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को, कि हमने भी क्या किया है कि हमने अवेयरनेस के लिए एक एमएसएमई हेल्पलाइन करके एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं अभी तक करीब 190 वीडियो डाल चुका हूं और पोस्ट कर दी है उसमें, और उसमें अभी करीब 1,75,00,000 से ज़्यादा व्यूअर्स हैं। कोई भी स्कीम होती है, हम तुरंत उस स्कीम की एक छोटी वीडियो बनाते हैं और उसको पब्लिश कर देते हैं कि आप देखिए, समझिए और इस स्कीम के बारे में जानिए। अब हम एक नया, एक और इनोवेटिव चीज़ शुरू कर रहे हैं, उसमें मैं चाहता हूं कि तेजस जी भी अगर हमारे साथ, और जागरण भी हमारे साथ किसी तरह अगर जुड़ सकें, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो हमारे साथ रहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि अवेयरनेस में, एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैनिक जागरण कुछ कर रहा है, टैली कुछ कर रहा है, अपने अपने लेवल पर सभी लोग या और जो एसोसिएशंस हैं वो सब कुछ कर रही हैं। लेकिन हमने अब क्या किया है कि भाई ये छोटे छोटे गांव में नहीं पहुंच पाती कई बार चीज़ें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी में उतने एडवांस नहीं होते, छोटे जो बहुत छोटे कस्बे होते हैं, लेकिन वो फिर भी वो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अब हम ट्रेनिंग टू ट्रेनर्स करके एक प्रोग्राम हमने इनिशिएट किया है अभी, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम कुछ ट्रेनर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, हम उनको ट्रेन करेंगे और फिर उनसे आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो छोटे छोटे गांव में जाकर, छोटे कस्बों में जाकर ये ट्रेनिंग दें, हैंड होल्डिंग करें एमएसएमईज की। अगर उनको बैंक जाना है, बैंक मैनेजर सुनता नहीं है, तो वो साथ में उनके जाएंगे, उनका हाथ पकड़ के उनको बताएंगे कि सर देखिए ये स्कीम है, आपके बैंक की स्कीम है, आपको ये देनी पड़ेगी, आप देख लीजिए, हमारी जो ड्यू डिलिजेंस करनी है कर लीजिए, लेकिन ये आप स्कीम को फायदा आप इनको दे दीजिए। इसी तरह और भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ, तो ये ट्रेनिंग टू ट्रेनर स्कीम जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं फॉर अवेयरनेस टू ऑल स्मॉल विलेजेस इनफैक्ट, और जो बहुत छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। नहीं, देखिए ये आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, और समय देखिए बिल्कुल हम लोग ओवर स्टेप कर चुके हैं, इसलिए हमें ये खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छे नोट पे बात खत्म हो रही है कि आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे है, और उसमें ये एक तरीके का रिजॉल्व है कि बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होते हुए हमें खुद को खड़ा करना है और देश को खड़ा करना है। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। ओवर टू यू मुकेश जी। तो अब मैं सर आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं खास तौर से यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन जयराम गडकरी जी का, हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री ए.के. शर्मा जी का, तल्लीन कुमार जी CEO जैम, मिस्टर तेजस गोयनका मैनेजिंग डायरेक्टर टेली सॉल्यूशन, मिस्टर संजय गुप्ता एडिटर इन चीफ दैनिक जागरण, और खास तौर से आपकी टीम को, तेजस जी और दैनिक जागरण की टीम को, मैं खास तौर से संजय गुप्ता जी, शैलेंद्र जेटली, सुमित रघुनाथ जी और आशुतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और टेली की टीम से किरण नायर जी को, तुषार भारती जी को और ज्ञानेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी पूरी तरह से मदद की। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे खास धन्यवाद के पात्र हैं वो हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स, जो एक दिन के नोटिस पर, यानी एक दिन की इंफॉर्मेशन पर हमारे साथ आए, जुड़े, हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। मुझे पता है कि आज हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए,
लेकिन हम उनके सवालों को कंपाइल करके उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द हम एक वेबिनार कर रहे हैं जहां पर हम ये जो एक नई स्कीम आई है सबऑर्डिनेट डेट की 20,000 करोड़ की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरा खास धन्यवाद श्री रवि मित्तल जी को और मैडम शशि सिंह जी को भी है। दोस्तों, हम इससे पहले कि मैं बस आज का ये ऑफिशियली डिक्लेयर करूं ये आज का कार्यक्रम समाप्त करने की, हम एक छोटी सी वीडियो है वो हम देखेंगे। जो हम एक छोटा वीडियो है वो हम देखेंगे यहाँ पर, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और टैली ने हमारे लिए बनाया है ये। तो Here's a question most of us have asked ourselves. In a world where nothing is the same anymore, how can it ever be business as usual? But the fact is, some will never ask that question. They will answer it. That's you, the micro, small and medium business people of the world. Because if the world has a shot at going back to normalcy, you will be at the center of it. You were the ones who stayed open, so we stayed safe. You were the ones who never worked from home, so the rest of us could. And now, you're the ones who will restart the engines of progress. You know why? Because none of this is new to you. Challenges, constraints, pitfalls, you've seen them all. You built because the world needs you, the innocent family, not more than ever. Because if there's one thing we know, it's that progress with one curve will never let slide. And we are planning on your side. We need to go. On our 7-day events, sleeping, hoping, and keeping. Because when you come back stronger, so will progress. This International Anthem Game has needs for the good news of every morning individual. I'm ready to support them in all their efforts. Today, tomorrow, and forever. तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं हैं आपको कि जैसे हमने आज ये इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया, बहुत पॉजिटिविटी के साथ हमने विचार सुने। मंत्री जी के, सेक्रेटरी साहब के, तेजस जी को हमने सुना, हमने सीओ जैम को सुना, रवि जी को सुना, शशि जी को सुना और आशुतोष जी ने बहुत ही अच्छे तरह से इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट किया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को और पैनलिस्ट को और साथ में हमारे जो गेस्ट हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।